Right now in Odisha, You can now start it. Yes. sir, right now the Naxalism is particularly concentrated in 75 districts. And if you see in Odisha, in 2003 and 4, it was in 23 districts, and right now only in 7 districts. Sir, government of Odisha actually has taken several initiatives. Like, sir, there is a special striking force and district volunteer force to tackle all these Naxalites. Along with, sir, there are also some many developmental initiatives. Like, sir, in Koraput, we have built a hall is there, sir, and also, sir, Nalco is there for aluminium extraction. And these are the things which make them people go for employment opportunities rather than joining these Naxalites. Along with, sir, there is also a rehabilitation scheme by the Odisha government, so that they used to surrender and they will rehabilitate the left wing extremism. So these are the steps taken by Odisha government to tackle, sir. सो प्रथम आई रिपीट इट फॉर यू. अभिजीत मुझे कुछ आंकड़े दे रहे हैं नक्सलिज्म पर, आपका डाउट था प्रथम मुझे. सो अभिजीत, 23 डिस्ट्रिक्ट से द नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट्स हैव कम अप टू ओनली 6. सो दैट इज अ 7. ह्यूज अचीव. ओके, 7. एंड Yes. डू यू हैव एन ऑल इंडिया स्टैट फॉर अस? पूरे भारत का आंकड़ा भी है क्या नक्सलिज्म का आपके पास? Sir, it is in 75 districts, sir. ओके, 75 में, बट अर्लियर द रेड डिस्ट्रिक्ट्स वर टू मेनी, राइट? Yes, sir. Sir, हाँ, यस यस, कुमार गौरव, प्लीज टेल अस, एनलाइटन sir, अस. according to Ministry of Home Affairs, there is only 38 districts all over India in which left-wing extremism is there. तो बहुत खूबसूरत बात है. तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आप अगर कोट कर रहे हो और सिर्फ 38 में रह गया है, मतलब आई थिंक 200 के आसपास थी पहले. Yes. एंड अभी नक्सलिज्म इज लेफ्ट ओनली इन, लेट्स से, व्हाट डू वी से, 38 जो आप आंकड़ा बता रहे हैं कुमार गौरव. एंड यू आर Yes, ऑलरेडी एन yes. ऑफिसर एंड यू आर रिसर्च स्कॉलर, सो यू हैव बीन वर्किंग अ लॉट. सो आप इस आंकड़े को नोट करें. अभिजीत, आपके लिए भी Yes. बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंकड़ा Yes. जो कुमार सर ने हमें बताया है. सो प्लीज Yes. नोट इट डाउन एवरीवन. ठीक Yes, है. sir. हाँ गौरव, कैसे हो? हाउ आर यू डूइंग? Good, sir. ओके, तहसीलदार जी, यू कम अप विद समथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क. यू हैव मेड अ लिस्ट. प्रशांत, तुम अपनी लिस्ट भी शेयर करना बाकी बच्चों के साथ. जो जो आज तुमने मुझे सवाल पूछे थे कलेजियम पर, वो सब वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा सबके साथ. सो यस, गौरव सब्रवाल, कम अप विद योर क्वेश्चंस. Okay, sir. Just a minute, sir. हाँ हाँ. हाउ आर यू डूइंग श्रेयांश जी? यू आर डूइंग गुड. Yes, sir. Yes, sir. Good, वंडरफुल. sir. वंडरफुल. बॉम्बे में हो या दिल्ली में? सब सब मुंबई में ओ, परसों आ रहा हूँ दिल्ली। ओ सॉरी, मुंबई है अभी तो. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. एनीवन, यू कैन कम अप विद एनी इशू, वी विल डिस्कस इट. हम सब डिस्कस कर लेंगे. आर्ची, हाउ आर यू डूइंग? मिस्टर आर्ची, आई थिंक ही इज द यंगेस्ट amongst us all. Yes, sir. I'm fine, sir. Preparation is going well, sir. Okay, you are also IIT and mathematics optional? Yes, sir. Maths optional. We have one more maths optional. I think Shivansh, you are also maths optional. Yes, sir. I think earlier today I contacted Archie, if I'm not wrong. Okay, so तुम्हारा मिलन हो चुका है. That's really nice. Fine, fine, wonderful, wonderful. Okay, Gaurav, come up with your questions now. Gaurav Sabharwal, we are waiting for you. Yes, sir. Sir, 1 minute, sir. Only. अरे So, तहसीलदार जी, हरियाणा सरकार की तरह काम कर रहे हो. Yes, Shreyansh, please tell me. so I have one question, sir. What should be the ideal answer to defend the Manipur issue, sir? Because for 2 years, government was not doing anything, and today only president rule has been imposed after resignation of CM, sir. So, what should be an ideal answer to address this issue, sir? See, आप एक देखो, आप बोल सकते हो कि सर, द लाइव्स लॉस्ट एंड द प्रॉपर्टी लॉस्ट वाज ऑब्वियसली वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इट इज रॉन्ग टू से दैट द गवर्नमेंट वाज नॉट डूइंग एनीथिंग. There have been challenging critics have been saying that the government is useless or whatever you want to say, but आप ये बोलोगे सर, it is wrong to say. They might have some local compulsions वहां पर और local considerations. शायद वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स का एक व्यू पॉइंट ले रहे हो, या वो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको और ज्यादा चांस देने की कोशिश कर रहे हो. ये हमें नहीं पता सर. वी सिटिंग आउटसाइड डू नॉट नो अबाउट मच अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज.
This is how you can defend. Otherwise, I have no defense to this carnage which this government has done. और आप ऐसा नहीं बोल सकते. It is, yes, absolutely the governance failure. The foreign media is saying this, the Indian media is saying this. Should you take a stand like Kejriwal and give a dharna? No. You are begging for a job there. आपको सरकार के साथ काम चलाना है. आप बोलोगे ठीक है सर, challenges हैं, देर आए दुरुस्त आए सर. We've recently imposed the president rule and we hope that it will bring peace and tranquility into the region. Maybe sir, the CM was not ready to resign. Maybe they were trying to resolve between the stakeholders, and without a power vacuum it is very difficult to resolve an issue, and president rule means power vacuum. So you could say this also कि अगर वहां लोकल गवर्नमेंट है तो वो इशू को और जल्दी रिजॉल्व किया जा सकता है. सच्चाई यही हो सकती है कि इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम. द बीरेन सिंह या बोबी सिंह, whatever his name is, that guy. But then you will not say like this. You will say, sir, if the local government is present, their government of the day has more chances to resolve those issues because it has police under its control. It has CRPF, local agencies under its control, intelligence उसके पास है, law and order उसका काम है, state subject है सर. तो आप यही बोलेंगे कि सर, yes, it was very unfortunate. Start with a lament. Yes, sir, it was unfortunate. And the critics were also criticizing, the foreign media was also criticizing, the Indian media was also criticizing. But sir, should we outrightly say that the government failure? No, sir. We have tried our best. And if there has been nothing, the CM has resigned. Now, logically, the next step is president's rule, sir. Is it an armed rebellion? Yes. Does it qualify for the state emergency? Absolutely. National emergency तक के लिए qualify करता है तो 352 भी अगर लगता तो कोई बुरी बात नहीं थी मणिपुर में. बट क्या हम कहेंगे नहीं यार, we can't say this. Unfortunately, we can't say this. और yes, any other thing? और बोलो. Gaurav, anyone? Sir, one question was why we India should strive for UNSC reforms. Even that it is we can say the UN has not been able to stop multiple conflicts, whether it is Russia, Ukraine, and all that, sir. See, this is why we want to do it, because we feel that UN is dysfunctional. And the country like India can take the lead. The countries like BRICS, the countries like India, the emerging economies can take the lead. See, UNSC today is divided between P2 and P3. वो P2 और P3 के बीच में divided है. And they are not actually reflecting the stark realities of 2025. जो आज का global order है. Today India is a force to reckon. African Union is a force to reckon collectively. BRICS countries are coming up. But UNSC does not reflect the ground realities or the geopolitical realities. And hence, and its failure simply means that we need reforms. And what better than a country like India who has the philosophy of Vasudev Kutumbakam? Sir, Okay, what sir. better than India's philosophy of Vasudev Kutumbakam and Panchsheel? We've guided SAARC, we've guided ASEAN, we've guided G20. हमने सबको तो सभ्यता सिखाई है, हड़प्पा मोहनजोदारो से लेकर अब तक. इतना इमोशनल नहीं होना, but yes, in terms of world peace, we are doing our bit. Sir, और question like UN is not what is the relevance of UN? It is not even able to stop any of the conflict. तो डैग हैमर एसके जोल्ड यूएन के प्रेसिडेंट, वो चीफ रहे हैं, उनकी एक कोटेशन दे देना यहाँ, उसका दिल जीत लेगी कि सर वी नीड मोर यूएन, वी डोंट नीड लेस यूएन. हमें यूएन ज्यादा चाहिए सर, हमें यूएन कम नहीं चाहिए. नेगोशिएटिंग टेबल इज द ओनली थिंग दैट यूएन ऑफर्स. Without negotiating table, we can only wage wars, and that is why we need SAARC also. Because without SAARC, India and Pakistan do not have any other. वो क्रिकेट फील्ड तक पर तो वो दुश्मनी अपनी निकाल रहे हैं एक दूसरे से, तो कहां पर दोस्ती होने का मौका है सर? सर वी नीड SAARC. इंडिया के केस में, SAARC के केस में, यू कैन कोट एडिटर ऑफ हिंदू सुहासिनी हैदर, एंड यूएन की जरूरत के लिए यू कोट कॉफी अनन एंड डैग हैमर एसके जोल्ड. एंड चेक द स्पेलिंग. मैं तो उसको याद करने के लिए ऐसे ही बोलता हूँ, डैग हैमर एसके जोल्ड. तो जे वुड बी साइलेंट, जैसे साइकोलॉजी को मैं पसाइकोलॉजी बोलता हूँ ताकि मेरे स्पेलिंग ठीक हो जाए. तो आप लोग देख लीजिएगा क्या बोलना है उसको. यस, थर्ड क्वेश्चन गौरव.
Sir, how to tackle the fake certificates like EWS certificate and all that? टेक्नोलॉजी, आप Sir, जो but इशूइंग अथॉरिटी को आप सशक्त करो। okay, आप sir. पूरा नोटिस भेजो कि जितने तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, अपना काम ढंग से करें। जो तुम जैसे लोग जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हो फर्जी, तहसीलदार जी, आप जैसे लोगों को एक तो सरकार सर्टिफिकेट दे, स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आप लोगों को एक तो नोटिफाई करे कि भैया जब तक आप पूरी तसल्ली नहीं करते उसके इकोनॉमिक स्टेटस की, उसकी रिटर्न्स की, तब तक आप उसको क्रीमी लेयर से बाहर ही रखेंगे या क्रीमी लेयर में ही कंसिडर करेंगे आप उसको। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप तब देंगे जब आपकी पूरी पुष्टि हो जाएगी, वरना फिर मैं एक्शन गौरव आपके खिलाफ भी लूंगा। Okay, sir. I Okay, am sir. UPSC, I'll take an action against you as well because you are the issuing authority. So sir. this can be a huge deterrent, this can be a huge preventive measure. फिर क्यूरेटिव मेजर तो अब उसको दुबई भगा दिया आपने, देवी जी को, जिसने इस बार का डैफ डिजाइन करा है, वो जिस स्टूडेंट ने शी इज डिजाइन द डैफ फॉर दिस ईयर, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइनिंग ऑफ दिस वंडरफुल डैफ। तो आप ये बोलोगे उसको, ठीक है ना? सर मतलब एक क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डिजिटाइजेशन कर दिया तो फिर आइडेंटिफिकेशन में फ्रॉड हो सकता है, तो उसको कैसे टैकल करेंगे? I am not saying complete digitization. See, human interference can never be eradicated. One second, I have a call. हाँ जी जी, अभी मैं क्लास के बाद देखूंगा, अभी मेरी क्लास है। हाँ हाँ। सो आप कहेंगे सर कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं हो सकता। लेट अस से आई एम फिजिकली हैंडीकैप्ड, आई एम फिजिकली चैलेंज, डिजिटाइजेशन कैन नॉट डू। एक डॉक्टर को तो देखना ही पड़ेगा ना मुझे आखिरकार कि मेरी आईज में क्या प्रॉब्लम है, मेरी लेग्स में क्या प्रॉब्लम है। डिजिटल तो मैं जूम पर आपके साथ बैठा, मैंने बोल दिया कि जी मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं सुन रहा, लेकिन फिजिकल इंटरवेंशन तो चाहिए ही चाहिए सर। वी ऑलवेज नीड अ ह्यूमन इंटरवेंशन। इवन इफ एआई बिकम्स 100 टाइम्स मोर पोटेंट, वी विल नेवर एलिमिनेट ह्यूमन सर। आप ये बोलिए उसको, वी शुड नेवर एलिमिनेट ह्यूमंस। ओके सर. You can give birth to a baby using the technology, but a mother's healing touch always has to be there. Sir, actually, during one of my mock interview, I have said that there should be means intervention, but they said that intervention you meant for the role of Mahatma Gandhi, and we means a more intervention that more you want corruption. So how to balance that? नहीं, इनकम टैक्स की बात करते हैं अगर, लेट्स टॉक अबाउट द इनकम टैक्स रिटर्न्स। आज भी आपकी आईटी रिटर्न्स जो हैं आप ऑनलाइन फाइल करते हैं लेकिन जब केस होता है तो आपको इनकम टैक्स कमिश्नर के आगे पेश होना पड़ता है। अगर कोई बड़ा केस लगता है, आप होते हैं या आपके लिए आपका सीए जाता है, लॉयर जाता है। सेम इज विद जीएसटी। जुडिशरी में भी यही है। आई मीन लॉ में जहां भी लॉ इन्वॉल्व है वहां पर पीपल विल बी इन्वॉल्व, ऑफिसर्स। फिर तो ऑफिसर्स की छुट्टी कर दो ना, व्हाई आर वी इवन हायरिंग यू? 100% cannot be there, 100% digitization cannot, yeah, humans cannot be totally replaced. Up you defend it, that's a humans, yeah, human intervention cannot be totally replaced. Yes, there are limitations, and that is why what we've done, that is why we have, yes, brought out digital reforms. No, you can still disagree and I can still talk on this. We can still agree on something. Please tell me more. Yes, sir. I am satisfied with this answer. Okay, you're satisfied. Yes, Mittal. Mr. Mittal, you are raising your hand. Tell me. Good evening, sir. Can I provide an input in this? Yes, you are. Yes, you are a probable AIR1. Your insights are crucial. बताइए आप. Sir, I think we can counter this argument by the panel members by saying that we can still file an FIR online, but the investigation has to be done by the on-ground staff of the police today as well. And secondly, we can also quote Prime Minister from the AI Summit, where he said technology can not eliminate work ever, but what it can do is generate new jobs in other fields which we'll have to tackle and embark upon. Same बात बोलिए. Exactly. This बस is एक what और I mean. एग्जांपल देना चाह रहा था मैं, हाँ, मतलब बहुत उम्दा, बहुत उम्दा. मैंने मदर का एग्जाम्पल दे दिया, आपने मोदी जी का, जगत पिता का एग्जाम्पल दे दिया। नहीं मोदी तो जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या
ऐसे प्राइम मिनिस्टर नाम लेके मतलब मोदी लेके बोल सकते हैं वहां पर? Not Modi. You will say the honorable PM, sir. The Okay. PM of India has said. ठीक है सर. If you say the PM of India, the vice, and even say the POTUS, President of the United President States. of the United States. Don't say Donald Trump or Names. Donald or ठीक है whatever सर. you want to say. Don't say that, right? ठीक है सर. Yes, Shivansh Tripathi, please go ahead. Yes, sir. So this is a question on IR. So I think Raj Shula sir asked that. So what do we need? Wait a second. Vasudha Kutumbakam or neighborhood first, or Jagat Bandhu, or we have to go by our own interest and have different relationships with everyone. So in all these type of questions, how should we tackle them? आप ये कहो अगेन, मैंने भी किसी को पूछा था, वासुदेव कुटुंबकम एंड नेबरहुड फर्स्ट. सर दोनों, मतलब वसुधा कुटुंबकम उसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, जगत बंधु का कॉन्ट्राडिक्टरी होगा. आप उसको ये बोलो सर, वी शुड नॉट सी दीज पॉलिसीज इन आइसोलेशन. IR is not a zero sum game and we cannot compartmentalize. मैंने आप में से किसी बच्चे को या किसी का हो गया इंटरव्यू, मैंने उसको कहा अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, सार्क, बिम्स्टेक और आसियान. वो बोला सर सबसे पहले आसियान, फिर बिम्स्टेक, फिर सार्क. एब्सोल्युटली रॉन्ग. तुम बोलो सर बिम्स्टेक इज अ ब्रिज बिटवीन सार्क एंड आसियान. इट इज अ कनेक्टिंग लिंक. क्या आप नेबरहुड छोड़कर आप इंडोनेशिया को डेवलप करेंगे क्या? वहां से दोस्ती बनाएंगे क्या? वो दोस्ती व्यर्थ है. अगर आप तालिबान में, पाकिस्तान में, अपने नेबरहुड में पीस नहीं पा रहे, तो शिवांश आप उसको ये बोलोगे सर देयर कैन नॉट बी कंपार्टमेंटलाइजेशन. बाकी अगर कोई स्पेसिफिक टर्म्स मुझे बोलो, मैं उन पर तुम्हें बताता हूं. जैसे कि वासुदेव कुटुंबकम के बिना नेबरहुड फर्स्ट हो ही नहीं सकता. पंचशील के बिना नेबरहुड फर्स्ट हो ही नहीं सकता. गुजराल डॉक्ट्रिन के बिना नेबरहुड फर्स्ट हो ही नहीं सकता. तो हम कैसे इनको अलग कर देंगे? वी कैन नॉट सेपरेट द टू. उसी तरह से कोई और पॉलिसी. हाँ, आई आस्क्ड आई थिंक प्रथम, विश्व मित्र और विश्व गुरु. प्रथम तुमने पूछा था या मैंने पूछा था, जो भी मुझे याद नहीं है. विश्व मित्र और विश्व गुरु. तुम बोलो सर हमें दोनों चाहिए. अगर हम एक अच्छा विश्व गुरु बनेंगे तभी तो हम एक अच्छे मित्र बन पाएंगे. और अच्छी मित्रता के बिना हम गुरु भी नहीं बन सकते. वी विल नॉट हैव दी. नाउ वी आर मित्र फॉर द थर्ड वर्ल्ड एंड हेंस वी आर द गुरु फॉर द थर्ड वर्ल्ड. वी आर लीडिंग द थर्ड वर्ल्ड. राइट शिवांश? तो विश्व मित्र और विश्व गुरु, यू कांट चेंज, यू कांट चूज बिटवीन देम. यू ठीक है, यू विल हैव बोथ ऑफ दीज. आपको दोनों आइसोलेशन में तो आप फॉरेन, एंड इन फॉरेन पॉलिसी यू से सर देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स. जब आपको रियलिज्म देखना है तब आप रियलिस्ट बातें करेंगे. आप रशिया से सस्ता तेल भी लेंगे, आप फ्रांस से रफाले जेट भी लेंगे, और आप साथ के साथ क्या करेंगे? आप इसके पैरेलली आप यूक्रेन में पीस समिट भी आप फॉलो करेंगे. भाई आप सॉवरेन हैं, संप्रभुता है. हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता, सॉवरेन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign. Sovereign means there is no power outside India or inside India, neither Naxalites nor Russia, America, who can dictate India. बस Yes, sir. खुश कर देना उस. और बोलो. Yes, sir. So when they like tried to make us choose between two contradictory concepts, can we just say that like these are guiding lights for our diplomacy, and these are not absolute principles for diplomacy, but they tell us like how we should go about doing it. आप बोलो सर, इट डिपेंड्स अपॉन केस बाय केस. जहां पर हमें विश्व मित्र बनना है वहां बनना पड़ेगा, जहां विश्व गुरु बनना है वहां बनना पड़ेगा. G20 में हमने गुरु होने का एक सिद्धांत निभाया. हमने एक पिछड़े हुए दोस्त को हमने उसको साथ लेकर आए. तो गुरु वॉज आवर लीडरशिप एंड मित्रता वॉज आवर इंट्रोडक्शन ऑफ G20 इनटू इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इनटू G20. सो यहां गुरु भी हम थे और मित्र भी हम थे. Krishna was the guru also and the mitra also of Sudama. He taught him both the things. Yes. If you want to go philosophical or religiously, otherwise you don't need religion here. You just say what I said. और बोलिए. और बोलिए. Yes, please come on. I am enjoying it. We are all enjoying. How to increase the connectivity with the northeast with giving the chicken neck corridor is very limited.
ऊपर से उड़ जाओ उड़ान स्कीम, Okay, sir. उड़ान स्कीम। दूसरा बांग्लादेश नेबरहुड फर्स्ट। आप शेख हसीना के घर, सॉरी शेख हसीना तो यहीं पे है, आप मोहम्मद यूनुस के घर से आप बस लेकर जाओ, आप वहां से मल्टी मॉडल आप ट्रांसपोर्ट बना रहे हो, मेरे को नाम नहीं याद रहते जगहों के, Kala, sir, Kaladan corridor. वॉट एवर दान इज दैट, यू गो फ्रॉम देयर। और इनफैक्ट बस जाती भी है यार, कोलकाता से अगरतला कोई बस जा भी रही है शायद, हमारी सिलचर तक भी जा रही है बस सर्विस, वो बांग्लादेश से होकर जा रही है। वो BBIN है सर शायद। हाँ, BBIN कॉरिडोर बांग्लादेश, हाँ हाँ, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल। इंडिया नेपाल BBIN। सो भूटान उसको तैयार नहीं हो रहा, इसलिए इट हैज बिकम अ बिन, ऐसा भी कहा जा रहा है। दैट इज ऑल्सो अ व्यू पॉइंट कि इट हैज बिकम अ बिन, बट देन अगेन तो आप ये Sir, बोलो। without relying on any external partner. हाँ, तो तुम उड़ान स्कीम कर रहे हो, लो कॉस्ट कैरियर। उड़ान स्कीम का बेनिफिशियरी एक्चुअली हमारे यहाँ, पता नहीं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला है या नहीं। हिज नेम इज, व्हाट इज हिज नेम, वन सेकेंड यार, वो आया नहीं, आदित्य शुक्ला। वो मणिपुर में नहीं, अरुणाचल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वो मैनेजर है वहां पर। एंड आई आस्क्ड हिम अबाउट द उड़ान स्कीम, ही सेड सर आई एम माई सेल्फ अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ द उड़ान स्कीम। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब उड़ान स्कीम आई थी 2016 में, मैं दिल्ली से बागडोगरा की फ्लाइट मुझे 3,000 रुपए में मिली थी, उड़े देश का आम नागरिक। और वो स्कीम क्या कैप करती है, वो एक घंटे के शायद वो 2,000 रुपए ऐसे कुछ कैप करती है, मतलब 50% ऑफ सीट्स आर सब्सिडाइज्ड। एंड देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF, इन दैट उड़ान स्कीम। एंड देन नाउ एक और गूगल कर लो, नॉर्थ ईस्ट में हर कैपिटल तक हमने रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया है। सिक्किम में एयरपोर्ट बन गया है, नॉर्थ ईस्ट के हर कैपिटल। एंड व्हाई डिड द नॉर्थ ईस्टर्न वोट फॉर बीजेपी? बीजेपी ने पहली बार उनको रोड्स दिखाई थी, रोड्स का चेहरा दिखाया था। एक मेरा दोस्त है आर्मस्ट्रांग पामे, सो ही टोल्ड मी कि मैंने पहली बार, और आप भी जानते हैं एथिक्स में, तो ही इज अ ग्रेट फ्रेंड, अभी ही इज द डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अर्लियर ही वाज द डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, है ना, द मिरेकल मैन जिसको बोला जाता है, मणिपुर में जिसने क्राउड फंडिंग से रोड बनाई थी और अपनी सैलरी कंट्रीब्यूट करी थी। वो मैंने उसको एक पॉलिटिकल, अगर मैं सवाल की बात करूं, अगर मैं मणिपुरी से पूछूं, मैंने कहा व्हाई डिड यू पीपल वोट फॉर बीजेपी, दे डोंट इवन अलाउ यू टू ईट बीफ। मैंने कहा व्हाई आर यू वोटिंग फॉर देम? वो बोले हमें पहली बार रोड का चेहरा बीजेपी ने दिखाया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO, इट्स ऑल वर्किंग देयर। एंड देन अरुणाचल को हम डेवलप, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है तुम्हारा, तो दीज आर ऑल दी पुश फैक्टर्स फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट नॉर्थ ईस्ट कम्स आउट ब्यूटिफुली। कनेक्टिविटी तो इसी तरह आप करेंगे इंक्रीज। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर अगर उड़ान स्कीम के तहत अगर हम जो रेट्स है उनको अगर हम कैपिंग कर सकते हैं, तो जो बाकी रूट्स जो है जहाँ पे कनेक्टिविटी भी ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा अच्छी है, फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई या फिर दिल्ली बेंगलोर हो गए, तो यहाँ पे जो प्राइसेस है उसको हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? तो सर इसका मतलब कुछ ज़्यादा, मतलब मैंने सोचा था तो इसमें और भी कुछ कुछ पर्सपेक्टिव मुझे आए थे। एक तो ये था, एक फूड से रिलेटेड भी था कि एयरपोर्ट्स पे फूड इतने महंगे क्यों है। हाँ, राजस्थान भी एक क्वेश्चन आया था कि क्यों नहीं कर पा रहे। और सी एक सर एक बॉडी के बारे में मैंने पढ़ा था, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी करके एक थी। तो अगर ऑलरेडी एक बॉडी है तो क्यों इन सारे इश्यूज को हम टैकल नहीं कर पा रहे सर? सी द ओनली थिंग कैन बी कि जो कुछ चार्टर्ड फ्लाइट्स इन मुंबई और इन रूट्स पर होती हैं, यहाँ पर आई डोंट थिंक दीज आर अंडर सर्व्ड सिटीज। एंड यहाँ पर आई डोंट थिंक दी ऑडियंस या जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस या बिजनेस क्लास ट्रेवल्स मोर यहाँ पर, चाहे इकोनॉमी में भी वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, बट दोज पीपल कैन एक्चुअली अफोर्ड। अगर आप एक बंदे को कंपेयर करें मणिपुर से या झारखंड से या उड़ीसा से या रूरल एरिया से अगर आते हुए, तो वो बंदा है, अब सिलचर से अगर मेरा फ्रेंड आ रहा है, आई थिंक ही इज वेरी, देयर इज मोर चांस दैट ही इज लेस लाइकली टू अफोर्ड इट फ्रॉम अ Tier 2 Tier 3 सिटी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेट्रोज, वी डोंट नीड टू सब्सिडाइज मेट्रोज। दिल्ली मुंबई फ्लाइट मोस्ट प्रोबेबली 90% क्राउड कैसा होगा? सूट बूट वाली सरकार वाला होगा। So he must be affording a good salary and everything, and he must be traveling. अगर गुजरात कोई मर्चेंट जा रहे हैं तो डायमंड वाले होंगे वो, या कपड़ा मर्चेंट्स होंगे वो,
जो मैंने ट्रेंड देखा है, चंडीगढ़ से गुजरात फ्लाइट्स हैं जितनी, अहमदाबाद, या तो वो दोलेरा प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, या वो साड़ियां लेने जा रहे हैं, या डायमंड खरीदने जा रहे हैं। उन लोगों को उड़ान स्कीम की जरूरत नहीं है। हालांकि फिर भी आपके एमओयूज जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जयपुर से सिंगापुर एक एयरलाइन जाती है, लो कॉस्ट कैरियर, दैट इज स्कूट एयरलाइंस। आपको शायद पता होगा श्रेयांश, यू वर्क इन दैट एरिया। सो वो दिल्ली से अगर फ्लाइट हमें कॉस्ट कर रही है सिंगापुर की 25,000, तो वो स्कूट एयरलाइन से कॉस्ट करती है सिर्फ 12,000। दैट डज नॉट कम अंडर उड़ान, दैट इज इंटरनेशनल फ्लाइट, बट वी हैव दीज एमओयूज विद द लो कॉस्ट कैरियर्स एज वेल इन रूट्स के लिए, जो बिजी रूट्स हैं इनके लिए, जयपुर टू सिंगापुर की बात करें। सो आई थिंक कि यार हम यही इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, जस्ट एज वी आर टैक्सिंग ऑल्सो देम मोर ना। हम कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न्स को 18% जीएसटी क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज मल्टीप्लेक्स ऑडियंस जो है वो क्या करे, वो अफोर्ड कर सकती है। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स प्लेन हमारे वो भेज रहे हैं, पॉपकॉर्न्स बेच रहे हैं, हम उनको 5% जीएसटी लगा रहे हैं। द लॉजिक इज सिंपल। इसलिए आप इसको देखो, और आई कांट जस्टिफाई, आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर, आई डोंट बिलोंग टू द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। व्हाट आई कैन थिंक ऑफ रैशनली इज दिस, दैट जो अमीर रूट्स हैं, जो रिच रूट्स हैं, उनको आपको सब्सिडाइज करने की जरूरत नहीं है। यस जागलान, you are raising your hand, tell me. Shivansh, I'll come back to you as well. Yes Bhavesh, bolo. I agree with your point, sir, that at least on the busy routes, it's the market to correct itself. But on the Udan scheme, I had a point, sir, that Udan scheme works on the principle of cross subsidization, as in, if there is a route in the northeast where 50% of the seats are capped at 2,500, the subsidy for that capping is coming from the busier routes, as in each flight that takes off from Delhi to Bombay, Indigo will pay about 6,500 to the government of India. That money that the government is collecting from busier routes is then being used to cross-subsidize the lesser connected routes. So if you were to cap both these routes now, then where will the money come from? And So, yeah. जागलान, आई डोंट थिंक वो इतना डीप आपको इसमें ड्रैग करेगा, बट व्हाट आई कैन से इज, सी क्रॉस सब्सिडाइजेशन जरूरी नहीं है कि बिजी और लाइट रूट्स पर होती है, वो इट कैन हैपन विद इन द फ्लाइट एज वेल। आप इकोनॉमी क्लास की टिकट्स को 2500 का रख रहे हो, लेकिन उसी प्लेन में बिजनेस क्लास वाला 30,000 की टिकट में भी उड़ रहा है, 50,000 की टिकट में भी उड़ रहा है, राइट? हाँ, तो But sir, उसका solution has to come from the market itself. If you see the flight ticket prices around 2005, 2006, बिल्कुल were exorbitant. And if you were to now say here we will cap certain seats, etc., then the development or the investment that the private sector would want to make, that will start stalling, So that's what we need to balance both the things. तभी हमने उस पर कैप रखा है कि हम 50% सीट्स को ही सब्सिडाइज करेंगे, और उनमें भी अगर वायबल नहीं है वो रूट तो हम उसको फंडिंग दे देंगे आपको। देखो वायबिलिटी गैप फंडिंग भी कैसे आ रहा है, आपने जो टर्बाइन फ्यूल है उस पर आपने टैक्सेस कम कर दिए, जो उनका स्टैंड बाय टाइम है, जो उनका रेस्टिंग टाइम है प्लेन्स का, वहां पर आपने किराया कम कर दिया, एआई उनसे कम किराया ले लेगा एयरलाइन से, टर्बाइन फ्यूल पर आपने सब्सिडी दे दिया। इंडिया में सबसे ज्यादा टर्बाइन फ्यूल की कॉस्ट करता है इंडिया में, और इंडिया में जो एयरपोर्ट चार्जेस लेता है इनसे, एयरप्लेन से, कैरियर से, वो भी सबसे ज्यादा लेता है। मतलब वी आर गिविंग देम, यस, मतलब if you have a doubt then you can ask me a specific crisp doubt discussion, we can go on. So अगर आप one solution that just came to mind after hearing you is, you mentioned that the user development fee at our airports is exorbitant. For Yeah. example, Delhi airport, each ticket UDF is about 1,000 rupees. Ahmedabad Okay. airport is about 500 rupees. हाँ, So maybe we can reduce that element for at least the poor people, or who can't afford otherwise. So that can be flipped off for other people who are unlikely to utilize facilities like duty free, etc. जागलान, we must be doing it, we must already be doing it. आपको लग रहा है कि हमें करना चाहिए, we must already be doing it to make our airlines sustainable, वरना सबका हाल किंगफिशर जैसा हो जाएगा, Right. वरना तो सब फेल ही हो जाएंगी, we'll fail as an airline. Plus the fear of duopoly coming up, sir. That will be bad for the market itself. The issue of duopoly, sir, as in Indigo and Air India surviving, the हाँ, rest collapse. That's And- even more problematic. एंड हम टेलीकॉम में देख चुके हैं ये होता हुआ। Yeah, absolutely. टेलीकॉम में यही तो हुआ कि रिलायंस फ्री सिम बेचकर भी पैसे कमा रहा है,
और BSNL अपना खर्चा मिस कॉल से निकाल रहा है या रॉन्ग नंबर से निकाल रहा है यार, you see, yes Shivansh, what is your doubt, tell me. Again, sir, this is an IR doubt. So when they ask us that have we failed in our in managing our neighborhood, so there are some pretty obvious failures and they are piling up. So what should we? आपके शब्दों का चयन आपके इंटरव्यू का डिसाइड करता है स्कोर. आप वो आपको उकसाएगा कि फेलियर है. आप कहोगे सर चैलेंजेस हैं. आप कहोगे सर फेलियर नहीं है, मैं केजरीवाल नहीं बन रहा. आप मुझे कोशिश करो फंसाने की. आई एम नॉट गोइंग टू बिकम अरविंद केजरीवाल. आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ धरना हियर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सर ये पॉलिसीज को टाइम लगता है. आपको कहो सर यस वी आर डूइंग आवर बिट. आई थिंक ये किसी बच्चे के साथ डिस्कस भी करा था मैंने, वो निकल गए वो मयूर वगैरह. हाँ उनकी तो हो गई इंटरव्यूज, तभी मुझे याद आ रहा है. देखो आप बोलोगे यस सर आई अग्री दैट देयर आर चैलेंजेस इन पाकिस्तान, अफगान तालिबान, यूनुस की बांग्लादेश, नेपाल एंड चाइना का OBOR जो है उनका मिक्स एंड मैच हो रहा है. देन देयर इज मुइजू हु इज प्रो चाइना एंटी इंडिया, एंड देन Sri Lanka mein there often comes a time when there is Mahinda Rajapaksa. He is obviously pro-China and anti-India. Sir, we are dealing with the military also in Myanmar. Sir, there are so many challenges in our neighborhood. Sir, it is not easy to be India. And it is a historical legacy also, these challenges. But sir, we are doing our bit. मोइजू के साथ वो डिप्लोमेटिक इशू हुआ, फिर भी हमने उसको इनवाइट करा. एंड वी हैव नॉट स्टॉप्ड आवर लाइन ऑफ क्रेडिट. हमने मालदीव्स को फिर भी पैसा दिया. उसकी इकोनॉमी खराब हो गई थी, हमने श्रीलंका को भी बेल आउट करने को हम तैयार हैं. हम बांग्लादेश में भी तालिबान आने के बाद भी हम आउटरीच कर रहे हैं. हमने अपना डिप्लोमेट एम्बेसडर वहां भेजा ट्रैक 1.5 में, ट्रैक 1 में, ट्रैक 2 में. हम डेवलपमेंट एड बिल्कुल बंद नहीं कर रहे हैं तालिबानियों को. हमने उनके साथ भी एंगेजमेंट स्टार्ट कर दिया सर. तो सर हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं इससे बाहर. We are not going away from our neighborhood and it always remains our first priority. In the long run, sir, it has only been 10 years. आप बोलोगे. In the long run, this policy will give fruits because according to our Prime Minister, we can, forget our history, but we cannot ignore our geography. We can ignore our history, we can change our history, erase our history, but can we erase geography? Never. तभी सार्क हमें चाहिए ही चाहिए. आप कोई भी बंदा वहां बोलकर मत आना सार्क नहीं चाहिए. सार्क चाहिए, बिल्कुल चाहिए. NAM 2.0 चाहिए, बिल्कुल चाहिए जी. UNSC में सीट चाहिए, बिल्कुल चाहिए. रिफॉर्म्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए. एक्ट ईस्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर, है ना. यस शिवांश, नेक्स्ट बोलो. हाँ सर. So now if they say that what are we doing in our neighborhood, we talk and we give money and we aid with projects also. अपना सिलेबस याद रखो, अपना सिलेबस याद रखो. हम क्या क्या करते हैं पॉलिटी में. हम जियो पॉलिटिक्स करते हैं, उनके साथ रेगुलर समिट मीटिंग करते हैं हम, है ना. चाइना को एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं. इकोनॉमी में हम सॉफ्ट लोन दे रहे हैं और हम लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं और हम डैम बनवा देते हैं. उनकी लड़कियों, सलमा डैम बनवा दिया, प्रोजेक्ट बनवा दिया, हाइडल पावर बना दिया. साइंस में क्या कर रहे हैं, सार्क सैटेलाइट दे दिया हमने उनको. कल्चर में क्या कर रहे हैं, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, बुद्धिस्ट एक्सचेंजेस, ऑल दैट फेस्टिवल्स मना रहे हैं ना, गिफ्ट दे रहे हैं. ये पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वी आर कोऑपरेटिंग एवरीवेयर सर. मुझे तो ऐसे ही याद रहता है. सिलेबस पर जाओ. क्या कर रहे हो जी पाकिस्तान के साथ, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कर रहा हूं जी. सार्क कंट्रीज के साथ क्या जरूरत है करने की सर, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. डोंट टेल हिम कि आपकी ये टेक्निक है, वो पकड़ लेगा तुम्हारी चोरी. बट देन यू गो विद द सिलेबस ना. पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला. यू आर डूइंग. आप पकड़ लोगे अब. हाँ बोलो शिवांश, बोलो. So the question was, whatever except for the cultural part maybe, whatever we can do, China can give more, and what we have going for us is trust. So they can ask that, do you think this much policy is enough, or India should bring some radical change in its approach to our neighbor? अब with respect to Africa, with respect to SAARC countries, with respect to Latin America, we are lagging behind in our outreach towards these countries. अब मैं हर्ष V पंत को कोट कर रहा हूं जो ORF का
मेंबर है, चीफ है, जो हेड कर रहा है, हर्ष पंत, जो आर्टिकल भी लिखता है आपके हिंदू में। उसकी बात गौर से सुनना। वो कह रहा है कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी एड में और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एड में जमीन आसमान का फर्क है। चाइना की सॉफ्ट पावर में और इंडिया की सॉफ्ट पावर में जमीन आसमान का फर्क है। चाइना's policy towards Africa, Latin America, and SAARC country is extractive, transactional, debt trap diplomacy, checkbook diplomacy, aggrandizing, land grabbing, capitalist या नियो कॉलोनियलिस्ट। चाइना ये सारी हरकतें कर रहा है। चाइना वहां क्या करता है? हार्ड लोन देता है सर, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है, जो अनसस्टेनेबल डेट बन जाती है सर। चाइना वहां के लोकल पॉपुलेशन को डेवलप नहीं करता। चाइना वहां पर सर आइलैंड्स ऑफ सिन बनाता है। चाइना टाउन्स देखे हैं आपने? कितने भूतिया होते हैं, लाल लाइटें होती हैं, ड्रग्स होते हैं, सांप छिपकलियां ये सब लटके होते हैं, अंदर जाकर प्रोस्टिट्यूशन हो रहा होता है, बाइकर स्टंट कर रहे होते हैं, चाइनीज बाइकर्स पत्ते खेल रहे होते हैं, माफिया चल रहा होता है पूरा। तो चाइना सर ये सब कर रहा है। चाइना वहां के लोकल लोगों को डेवलप नहीं कर रहा। चाइना खुद की लेबर ले जाकर वहां पर खुद की दुकानें खोल रहा है। आप इटली में देखो, सारी सोवेनियर शॉप्स किन की हैं? चाइनीज लोगों की हैं। आई एम गिविंग यू अ परफेक्ट एग्जांपल विच आई हैव सीन थ्रू माय आईज। तो इटली में या बांग्लादेशी बेच रहे हैं सस्ता पानी, पाकिस्तानी, या चाइनीज लोग बेच रहे हैं। नेपल्स में जाओ आप, रोम में जाओ, फ्लोरेंस में जाओ, कहीं भी जाओ। सो लेकिन अब इंडिया पर आ जाओ। इंडिया क्या है? इंडिया इज अगेन, वो अगर हार्ड लोन दे रहा है, इंडिया सॉफ्ट लोन दे रहा है। इंडियाज पॉलिसी इज नॉन ट्रांजैक्शनल, इट इज गांधीयन, इट इज पंचशील, इट इज गुजराल डॉक्ट्राइन, है ना। इंडिया डज नॉट एक्सट्रैक्ट, इंडिया अनसस्टेनेबल डेट नहीं क्रिएट करता, इंडिया नियो कॉलोनियलिस्ट नहीं है। अभी अभी हमने इंग्लैंड से कौन से आइलैंड, चैगोस आइलैंड्स की सॉवरेनिटी किसको दिलाई है? मॉरिशस को दिलाई है। इंडियन ओशन में कोई तो ऐसा अभी रिफॉर्म करा मॉरिशस है ना, मॉरिशस को दिलाई है। इसका मतलब पता है क्या है श्रीवांश त्रिपाठी? हम आज तक डीकोलोनाइजेशन में विश्वास रख रहे हैं। हम आज तक डीकोलोनाइजेशन में विश्वास रख रहे हैं। तो भैया इंडिया की सॉफ्ट पावर में और चाइना की सॉफ्ट पावर में जमीन आसमान का फर्क है। आप ये बोलिएगा उसको। इंडिया डेवलप्स एज, और यार अफगानिस्तान में चाइना उनके लिथियम के पीछे पड़ा है, ओपियम के पीछे पड़ा है, डिफेंस के पीछे पड़ा है। हम क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान की लड़कियों को जिनके मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो गए हैं उनको फॉलिक एसिड टेबलेट्स दे रहे हैं, खून की कमी उनकी कम कर रहे हैं। हम बिस्किट दिए हैं हमने उनको, आयरन सप्लीमेंट्स वाले, और फ्रेंडशिप डैम बना रहे हैं हम वहां पर। अफगान पार्लियामेंट बना रहे हैं। मालदीव्स का रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट खराब होता है, उसको हम ठीक कराते हैं उसी टाइम, पानी भेजते हैं अपना। वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड वी आर अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो हमारे जैसा नहीं कोई हो सकता। आप इतनी तारीफ कर देना कि वो रोने लग जाए, भावुक हो जाए, ठीक है? और बोलो। So if they Yes. ask that, despite all this, are they responding to this or not? Sir, it Or why? takes time. Then again, diplomacy. Now, you also be diplomatic. If they want to put something in your mouth, you vomit it out. बोलो मैं नहीं चबाऊंगा इसको। You, they will try to woo you. They will try to. अब मैंने तुम में से एक लड़के को पूछा था, इट्स माय फेवरेट क्वेश्चन, कि कौन सी मिनिस्ट्री के आगे धरना दोगे तुम इस चीज के लिए? वो बोला सर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के आगे धरना दे दूंगा जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए। मैं क्या, धरना क्यों देगा भाई? देयर इज अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। धरना क्यों देना है? तुमने आईएएस बनने जा रहे हो, व्हाई वुड यू स्टार्ट? हाँ, भावेश ही है उसका नाम, और वो वहां से है, तुम्हारा सूरत से है वो लड़का, और उसके वहां पर डांडी मार्च हुआ था कहीं तो उसके घर के पास। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अनदर सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया? यू बिलोंग टू दैट कंट्री जहां सिविल डिसोबीडियंस हुई? बोला यस सर, गरीबी है हम में, ये है, सिविल डिसोबीडियंस तो होनी चाहिए सर। भैया नहीं होनी चाहिए, यू विल बी थ्रोन आउट। दे डोंट नीड अन्ना हजारे एंड केजरीवाल। ओके, भावेश ने लिखा है, सर I have found a good line. Bhavesh, you always find them. Our neighbors should trust geography
if not India generosity. They may have heard of a proverb from the Chinese friends themselves, a near neighbor is better than a distant. बिल्कुल यार, मोदी जी की भी तो बात है, वन न्यू फ्रेंड या वन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन टू न्यू फ्रेंड्स, है ना? And we cannot ignore our geography. We can forget our history, we can manipulate history, but not geography. Yes, next question. अगला सवाल किसी को भी. Vijay Lakshmi, how are you doing, Vijay Lakshmi? How's your law optional going on? Good evening, sir. Sir, Very doing well. Today only I gave my first mock. Was not very good, but कोई बात नहीं, things will fall into place. Don't worry, you are a master in law. आप तो उनको वकालत सिखा सकती हैं देवी जी, और आप पंजाब यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाई हैं, जहां का मैं हूं. मैंने भी अपना पॉलिटिकल साइंस पीयू में पढ़ा है, और वकालत भी मैं वहीं से कर रहा हूं, तो डोंट वरी, यू आर देयर. और तुम्हारे साथ तो और बहुत हैं. मनमोहन सिंह है तुम्हारे साथ, एंड दुष्यंत चौटाला इज देयर विद यू फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ लॉ. बहुत सारे मंत्री हैं, तुम तो घबराओ मत. अभी तो तुम्हारा लेट है, कोई बात नहीं, आई विल टीच यू. अभी तो फेब वाले मेरी प्रायोरिटी है, फेब मार्च वाले. Yes, carry on, guys. Please ask me, Mittal. Please. हाँ. Please continue. मतलब वो कुछ कह रहे थे. हाँ, okay, Vijay Lakshmi, please tell me. yes, sir. So I was just having two questions. Sir, one is with respect to UN. Sir, like we are asking for reforms, but if they ask that, do you really think that in near future that UN will ever reform, given the difficult conditions in the UN Charter itself with respect to UNG and UNSC votes? So how to approach this question? Because in practical, आप बोलो sir, giving up is not an option. We need to keep giving we need to keep applying our diplomatic capital. Never be pessimistic there. Yes, you are being realistic. लेकिन जब एस जयशंकर रोज बोल रहा है that we need reformed multilateralism, मोदी जी रोज बोल रहे हैं we need reformed multilateralism, वो बोल रहे हैं we need climate justice. जब वो रिफॉर्म के लिए बोल रहे हैं, तो हम कौन होते हैं रिफॉर्म को मना करने के लिए? When our prime minister wants reforms, our external affairs ministers wants reforms, then who are we to say no reforms? आप उनको कोट करके उनका सहारा लो कि भाई एस जयशंकर तो मूर्ख नहीं है, मैं हो सकती हूं, तुम हो सकते हो, ये मत बोलना. लेकिन संदर्भ यही है कि जब उनको रिफॉर्म चाहिए, तो हम कौन से खेत की मूली हैं भैया? हमें तो रिफॉर्म चाहिए चाहिए. विजय लक्ष्मी, आर यू कन्विंस्ड? yes, sir. ओके, थैंक यू. वकीलों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. दूसरा डाउट पूछिए देवी जी. Yes, sir. So it was asked to one of my friend in the mock, sir. Like given the present circumstances, which is the one neighbor which you considered most dangerous? So, sir, he answered. Yes, sir. Okay. So he answered China, citing all the factors, economic, military, and all. So even when he asked all of us, we also gave this same answer that China, like considering that all other things are temporal, but China ke saath mein it's a sort of permanent thing. But sir, then the review was given that you don't have to approach this answer in this manner. Rather, you have to say that no neighbor is dangerous. Rather, there are challenges. देखो, दोनों चीजें हैं. आप चूज भी करोगे तो कोई बुराई नहीं है. इट इज अ रियलिटी दैट वी आर okay. There are two views. One view is Patel wala view that China is an enemy. The other view is a Nehruvian view which is idealistic कि हिंदी चीनी भाई भाई. लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई में हमें धोखा मिला है, तो चाइना के साथ आइडियलिज्म करके हमें धोखा मिला है. तो प्योरली आइडियलिस्ट तो हम चाइना के साथ नहीं रह सकते. मैंने एक आप लोगों को मंत्रा दिया जो मैंने भी इन स्कॉलर से उठाया कि चाइना के साथ कोऑपरेट वेयर पॉसिबल, कन्फ्रंट वेयर नेसेसरी. जहां आपको पॉसिबल हो कोऑपरेट करो, वो आप कर भी रहे हो. जहां जरूरत है वहां कन्फ्रंट करें चाइना के साथ. तो आप ये बोलेंगे कि देखो, यू कैन पिक अप हेयर. हाँ, ये एक व्यू भी हो सकता है कि वी आर इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस विद चाइना. हमारा वो सबसे बड़ा पार्टनर भी है, ट्रेड पार्टनर भी है नेबर्स में, लेकिन हमारा सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट भी किसके साथ है? चाइना के साथ है. चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी हमें परेशान भी करती है. चाइना हमें सार्क में भी, हमारे सारे नेशंस चाइना कार्ड खेल रहे हैं. चाइना हमें एपीआईज में भी बुली कर रहा है. चाइना हमारा इंडियन ओशन में भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है.
We are against China when we go towards free and open Indo-Pacific, rules-based international order, open sea lanes of communication, respect to UN clause, UNF ट्रिपल. हम बहुत जगह चाइना से कंफ्लिक्ट में है सर, फिर भी हम उनके सबसे बड़े पार्टनर हैं. तो ऐसा नहीं है कि सारे पड़ोसी हमारे दुश्मन है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस भी है, बट सर हमें खतरा तो है चाइना से. हम अरुणाचल में ऐसे ही थोड़ी अपने रफाले जेट रख रहे हैं. हम अरुणाचल में या बॉर्डर रोड्स को ऐसे ही थोड़ी डेवलप कर रहे हैं. वी हैव टू बी रियलिस्टिक ऑल्सो. सो आप ये बोल सकते हो टू बी ऑन द सेफर साइड इफ यू डोंट वांट टू पिक कि सर देयर इज एन आइडियलिस्टिक व्यू which says that we need to have good relations with all the neighbors, but sir practically realistically foreign policy is all about realism. Idealism वाला foreign policy में मारा जाता है. तो सर we are strengthening our own house also. क्वाड हमने क्यों बनाया विजय लक्ष्मी? चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में. ऑकस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? और इंडो चाइना और इंडो पैसिफिक पॉलिसी फ्रांस की, जर्मनी की, यूके की, यूरोपियन यूनियन की, इन सब देशों की इंडो पैसिफिक पॉलिसी भी इंडिया को क्या मानती है? एज अ बैलेंसर टू चाइना. अगर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है उसमें आसियान सेंट्रलिटी है, लेकिन आसियान ऑल्सो कंसिडर्स इंडिया एज अ बैलेंसर टू चाइना. सो चाइना इज अ रियलिटी, चाइनीज थ्रेट इज अ रियलिटी. आइडियलिज्म से नहीं हो रहा. हाँ, डी एंगेजमेंट, हम डी एस्केलेशन का हम ट्राई कर रहे हैं बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें मैंडेट कर रहा है आर्टिकल 51 में कि कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को हमें डायलॉग से पहले सॉल्व करना है. अदरवाइज वी हैव वेपन्स. Yes, sir. If you are convinced, you can take it with a pinch of salt, or you can say no, sir. No, sir, I'm convinced. Like, even I think the ending remarks were something missing in the answers, that how on a positive note we can end. पॉजिटिव नोट यही है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. सर हम कोशिश कर रहे हैं सर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम चाइना से हम कोऑपरेट करें, अपना ट्रेड डेफिसिट कम करें हम चाइना से. इनफैक्ट एक और आपको आंकड़ा दे रहा हूं. आंकड़ा क्या दे रहा हूं? जो ये सी बेड पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है ना, वो हम जॉइंट एक्सप्लोरेशन पता है किसके साथ कर रहे हैं? चाइना के साथ कर रहे हैं. सोचो, श्रीलंका पर चाइना की सबमरीन को हम काउंटर कर रहे हैं और नीचे ओशन बेड पर क्या कर रहे हैं? चाइना के साथ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल ढूंढ रहे हैं. वो कहते हैं ना, मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. समवन सेड सो. ठीक है. Yes, sir. हाँ. सो आई डोंट नो. आगे चलिए. यस, एनी अदर डाउट? ओके, मित्तल. यस, मिस्टर मित्तल. Sir, my doubt is not an academic one, it's a general doubt. Okay. I am about to give a panel mock tomorrow, Okay. and I am very fearful. It is often said that it is not a test of knowledge, It is but a it is test. but it is knowledge only which is causing fear. कि मुझे ये नहीं आता होगा, I might not give answer to a particular set of questions, or I'll be saying no n number of times. Although it did not happen when I gave a one-on-one mock to you, but सी ईशांक, आई टेल यू वन थिंग. आप लोग जो है ना, हिंदुस्तान के टॉप 2500-3000 बच्चों में से एक हैं. अगर मैं आपको नीचा दिखाना चाहूं, मुझे आपका चेहरा ही पसंद नहीं आ रहा, मैं आपको कहूं कि भाई यूरेनस और सैटर्न के बीच में डिस्टेंस क्या है, आप बोल दो कि सर इतने लाइट ईयर्स है. फिर बोले नहीं, मुझे तो किलोमीटर में बता, मुझे तो माइल्स में बता. देखो, अगर मैं वैसा करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, बट क्या मैं ऐसा करना चाहता हूं? नो. आपके एलिमिनेशन राउंड्स खत्म हो चुके हैं. प्रीलिम्स वाज एन एलिमिनेशन राउंड जहां आपको बाहर निकालना चाह रहे थे वो. मेंस अगेन वाज एन एलिमिनेशन राउंड जहां आपका आइडिया नहीं पसंद, आपको बाहर निकाल रहे हैं. इंटरव्यू इज नेवर एवर एवर एन एलिमिनेशन राउंड. इट इज माय एक्सपीरियंस. इंटरव्यूज आर ऑलवेज एनेबलिंग. और तुम तो 23 साल के हो यार, तुम तो उनके दामाद हो. 23 साल वाला वहां काम नहीं आएगा ना. ये थोड़ी कह सकता हूँ मैं तो 23 का हूँ, छोड़ दो. नहीं, वो खुद तुम्हारा लोलू पोलू सा चेहरा देखकर तुम्हें बोलेगा यार इसको तो हमने रखना है. सर, he will nurture you. Please, no, it is my, please understand. Okay, जो 23 से बड़े हैं, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे चांस कम है. भाई ऐसा मत समझना कि तुम तो गॉड फादर हो गए, अब तो कोई फायदा नहीं है. ऐसा नहीं है. 32 साल वाले हो गया हूं सर. 32-35 वाले भी निकाल रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस है. लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं भैया, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज की. यू आर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर.
सर उसको कॉन्फिडेंस दिखाना अपना, ठीक है 10 में से 10 क्वेश्चन गलत करके आना, वो आपको पता है क्या कहेगा, भैया तुम ही बताओ कहां से पूछा जाए। ठीक है। बस चांदनी चौक ले जाना उसको, नहीं मैं तो कह दूंगा डेफ में से पूछ लो सर सब कुछ। बोल दो आप, सर आई प्रिपेयर्ड माई डेव वेरी वेल सर, आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दीज ओके पर्सनल फ्रंट्स। ओके सी इफ यू गेट दिस चांस, हाँ ठीक दिस है। इज अ वेरी प्रोबेबिलिटी अगर देखें ना तो 1 in 100 है ये प्रोबेबिलिटी कि तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। तुमने मेंस क्लियर करा है, मतलब यू हैव अ पर्सपेक्टिव ऑन ऑल पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड द करंट अफेयर्स एज वेल। हम्म और मैंने जो तरीका बताया आप देखो ना, आप विजन आईएएस का वो इंडेक्स स्टार्ट कर पढ़ो। दिया है। हाँ, और उसमें से देखो कि कौन सी चीज तुम्हारे काम की है पिछले वो 6 स्टार्ट महीने करा सर बट एक्चुअली क्या है कि मॉक कल है तो हम्म, ऐसा लग रहा है मतलब आई वांटेड टू आस्क द अदर पीयर्स एज वेल कि हम्म। डिड यू एवर फील दैट यू आर रेडी इनफ टू गिव अ मॉक और एन इंटरव्यू क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू है। बोलो भाई अदर पीयर्स। आयुषी, आई वांट यू टू आंसर दिस। मैडम इसरो, मैं चाहता हूं आप ये आंसर करें। इफ यू वर हियरिंग मिस्टर मित्तल। Yes, sir, I am hearing him. हम्म। So you answer his question. Did you have fear, Ayushi? When I appeared for these mocks, I did not have any fear, to be Hmm. honest. Hmm. But that also comes because I have so much experience and I have appeared for many reviews at my workplace. So Hmm. it's very natural to feel that kind of fear on the first time. But Hmm. then you will gradually develop that confidence, and nothing is going to be so bad. And what is there to be fearful about? भाई ये वो बंदी है जो सैटेलाइट छोड़ रही है आसमान में, गगनयान, चंद्रयान, वॉट एवर यान, मॉम मिशन, एवरी मिशन शी इज डूइंग इट। आई इट थिंक द कम क्वेश्चन दैट शी आस्क्ड व्हाट इज देयर टू फियर अबाउट यही है मतलब ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना डरने लायक मतलब आई थिंक यही है कि नहीं आता होगा तो बाहर आ जाएंगे बिना कुछ बोले मौकी तो है। ना सम्मान का मोह ना अपमान का। भाई आप इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो? तेरा तो अभी मार्च में है ना, 20 मार्च को है। हाँ सर 20 मार्च। तो तब तक तो मैं तेरे को 10 बार और तैयारी करवा दूंगा यार। वाई आर यू वरीड? माई वरी आई इज डोंट नो। फॉर जो 20 तारीख तक कुमार गौरव हो गया, आदर्श हो गया, इनको फोन कर करके बुलाया मैंने। गौरव हो गया, इनके लिए मीटिंग है ये। क्योंकि कुमार कह रहा था सर मच नीडेड, वी आर हैविंग नर्व्स एंड ये and वो, तो तब मैंने बुलाया है। तो तुम तो इनको नर्वस नहीं, तुम तो बोलो सर फोड़ कर आएंगे हम, चिंता मत करो। डन। यस, ओके गौरव सबरवाल, यू हैव अ डाउट, टेल मी गौरव। Sir, actually, in such question, who is your favorite PM? What to say? Oh, sir, all have done their part, sir. Nehru had a different charisma. He had that, he adopted that India, जो बहुत difficult था manage करने को। इंदिरा गांधी को या शास्त्री को एक बहुत टफ टाइम मिला था, एक ट्रांजिशन, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फिल द गैप्स ऑफ नेहरू। राजीव, शी डिड वेरी वेल सर। राजीव गांधी को एक माँ की मृत्यु हुई थी ताजी ताजी, तो बॉम्ब ट्रेजेडी एंड अगेन ही वाज शॉर्ट लिव्ड। सर बाकी सबने भी बहुत अच्छा काम करा कोलिजन एरा में। इट वाज नॉट इजी टू हैंडल इंडिया। पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी, मुंबई अटैक्स एंड लिबरलाइजेशन, बीओपी क्राइसिस सर। मनमोहन सिंह डिड वेरी वेल सर। टेररिज्म भी था उसके लिए, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी थे। ही केम आउट, रिसेशन से भी बाहर आया सर। 2 साल के अंदर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम रिसेशन को मार दिया। और मोदी जी तो सर ही इज व्हाट एवर यू वांट टू से। Okay, sir. देखो कॉन्फिडेंस रखना। बोल रहा है ना सार्क में क्या चैलेंजेस हैं, बोलो सर बहुत चैलेंजेस हैं। शुरू हो जाओ सर। पाकिस्तान एक उसकी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, वहां पर तालिबान बैठा है, वहां चाइना कार्ड खेला जा रहा है, भूटान इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, बांग्लादेश हैज अ पॉलिटिकल टर्मोइल, आवर फ्रेंड हैज कम आउट फ्रॉम बांग्लादेश ऑन एन असाइलम। श्रीलंका, मालदीव में सर प्रो चाइना गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। करें तो करें क्या? बोलो चैलेंजेस हैं, कर क्या रहे हैं सर? नेबरहुड को धक्का दे रहे हैं, देते रहेंगे। बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक for God's sake. Yes, Vijay Lakshmi, you raised a hand. Please tell me. Sir, I was just like wanted to answer Mittal's question about that mock only. Okay, Vijay Lakshmi, carry on now. You are प्लीज। an enlightened human. We'll all listen to you. Please tell us. Sir, actually, I just wanted to share that I also gave my first mock today only.
and before that I had cancelled my 2 mocks ये after हो चुका scheduling. मेरे साथ सेम। हाँ, तो I have done this thing, और ये जो मेरा आज वाला था ये मेरा कल शाम को ही कंफर्म हुआ था कि कल पैनल मॉक देना है। ठीक है, तो और अगर आप मेरा डैफ देखोगे ना, इट इंक्लूड्स सो मेनी थिंग्स दैट सीम्स टू बी नेवर एंडिंग, इजराइल पैलेस्टीन, इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स, क्लाइमेट चेंज, डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तो डैफ भी प्रिपेयर्ड नहीं था, बट आई थॉट कि ओके कहीं से तो स्टार्ट करना है, सो लेट्स गो। नहीं आएगा तो मतलब नो वरीज, आई विल से सर आई डोंट नो, एंड दे अप्रिशिएटेड दिस थिंग दैट ऑनेस्टली यू आर एडमिटिंग द थिंग्स व्हिच यू डोंट नो। सो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां जाके भी मैं बहुत नर्वस थी, अंडर कॉन्फिडेंट थी। दे इवन टोल्ड मी दिस थिंग दैट यू सीम्स टू बी सो नर्वस, काम डाउन और ऐसा ऐसा कुछ करके, बट ठीक है, इट विल गिव यू सम एक्सपीरियंस और एटलीस्ट इट वुड बी अ स्टार्टर। सो थैंक यू। या ठीक है, कल वाला देखे आता हूँ फिर। थैंक यू। हाँ, पूरा अच्छे से पूरा एकदम फोड़ कर थैंक आना। यू सर। और बोलो। यस, प्लीज कैरी ऑन गाइस, आई एम हियर विद यू, आई एम सिटिंग हियर, जितनी मर्जी देर मुझे लगाओ। Sir, और is बोलो। Trump anti-India, or we can say? ट्रम्प इज, अभी मैं प्रथम को यही बता रहा। प्रथम, डू यू वांट टू आंसर दिस? ट्रम्प इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अ चैलेंज। पहले चैलेंज बोलना, चैलेंजेस है सबको पता है, फिर अपॉर्चुनिटी बोलना। प्रथम, प्लीज कैरी ऑन। Yes, sir. So Trump is a challenge because of the transactional nature of the diplomacy, as well as the ambiguity in his policies. However, it can be an opportunity for India because he has a clarity that he will do business if the deal is good, and India can provide that deal. Very India good. can provide the best, like the largest middle income market to the US, as well as we are the balancer to the China in the region, and India cannot be replaced. So US wants India as much as we want them. So it should be a bilateral relation that will be cherished. And Gaurav, Trump has a very rigid stance on rogue, okay, let's not call them rogue, but countries like Pakistan. Yes. उसकी जब 2018 की अफगान पॉलिसी आई थी, उसमें स्पेसिफिकली उसने इंडिया का रोल अफगानिस्तान में भी मेंशन करा था। एंड ही सेड दैट पाकिस्तान इज नॉट अ सॉल्यूशन, पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। ये डोनाल्ड ट्रंप पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसने पाकिस्तान की कड़ी निंदा करी थी, राजनाथ सिंह से ज्यादा, कि पाकिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। कि पाकिस्तान ही तो है अफगानिस्तान में जो पंगे डाल रहा है, और हम तो एक सांप के साथ बैठकर ट्रीट करना चाह रहे हैं, स्नेक बाइट को। तो ट्रंप ने सबसे पहले ऐसा किया था, आप कहेंगे। तो यार, ट्रंप इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अ चैलेंज। चैलेंज है, लेकिन सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी। एंड यस, कुमार गौरव बहुत सही बात बोल रहे हैं कि ही हैज अ क्लियर स्टैंड ऑन टेररिज्म। ही इज एंटी टेरर, ही इज टोटली इंडिया वाला स्टैंड रखता है, वेरी रिजिड। आप बोलोगे अफगानिस्तान पर क्या गिराया था? मॉब फॉब, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ये ट्रंप ने गिराए थे। वो बोले रखने थोड़ी है ड्राइंग रूम में सजाकर, गिराओ, अब इनको मौका है, खेलो। तो यस, ट्रंप इज दैट गाय। आप बोलेंगे अध्ययन, हाउ आर यू डूइंग? यस मिस्टर अध्ययन। Sir. Okay, I think Dr. Adhyan, right? Yes, sir. Okay, how are you doing, Adhyan? You're good? Yes, sir. Okay, you want to give some insights? You want to ask something? Tell something? No, sir. I'm learning from the Okay. You are enjoying. Mittal, yes, you raise a hand. Tell me, Mittal. I forgot to lower my hand from the previous question itself. Sir, I have one question. Okay, go on. Bolo. Whosoever has a question, please. Yeah, Gaurav, you can go. Gaurav. So, one question about the POTA, obviously. Why he's doing this so proactive action? Who? POTA, like US president. Okay, POTUS. POTUS, yes. Okay, so कौन सा proactive action की बात कर रहे हैं आप? Whether it is the withdrawal from many bilateral agreement or the multilateral agreement, or even with the immigration policies. So he's having a proactive stance over many things. आप बोलोगे सर उसकी, देखो अब वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी मानसिकता, उसकी आइडियोलॉजी ऐसी है। ही इज अ हाइपर नेशनलिस्ट,
ही इज एन अल्ट्रा कंजर्वेटिव स्कॉलर है, ही इज अ फार राइट। उसकी पॉलिसीज क्या हैं? बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन, अमेरिका फॉर अमेरिकन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। ये 4 पॉलिसीज हैं। ये पॉलिसीज हाइपर नेशनलिज्म को दर्शाती हैं दुनिया में। एंड ट्रंप इज अ हाइपर नेशनलिस्ट पर्सन। He hates the minorities. He hates the foreigners, migrants. Xenophobic बंदा है वो। ये Sir, पिछली बार एंड वो अमेरिका के, जो अमेरिका ने स्टार्ट करा था दुनिया में एलपीजी, वो उसको रिवर्स कर रहा है। वो डी ग्लोबलाइजेशन कर रहा है, लिबरलाइजेशन की जगह प्रोटेक्शनिज्म कर रहा है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेट तो वो बंदा है। और ट्रंप किनका भाई है? नेतन्याहू, एर्डोगन, रशिया का पुतिन, शी जिनपिंग, शिंजो एबे थे, वो चले गए, बोल्सोनारो ब्राजील, दीज वर ऑल हाइपर नेशनल गाइज, किम जोंग अंग, ये सब हाइपर नेशनलिस्ट बंदे हैं। डोंट से मोदी जी। ट्रंप सर इज, इतना हार्श स्टेटमेंट ले सकते हैं क्या वहां पे? सी ट्रंप के लिए ले रहे हो ना, दिस इज नॉट अमेरिकन सिविल सर्विसेज। यार ट्रंप के लिए ले रहे हो लोग। अब पुतिन को पुतिन नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? बंदे हैं भाई, ये गुंडे हैं। तो शी जिनपिंग को कहां अच्छा कहेगा कोई? हाइपर नेशनलिज्म इज रियल। यू गूगल हाइपर नेशनलिज्म, नीचे एग्जांपल मोदी जी का भी आ जाएगा किसी ना किसी अखबार में। बट मोदी जी इज नॉट हाइपर नेशनलिस्ट। ये उनका भ्रम है फॉरेन वालों का। हम जानते हैं हमारे मोदी जी को। वी रिस्पेक्ट मोदी जी एंड वी नो मोदी जी, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ट्रंप का। ओके, हाइपर नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म को चरम सीमा पर पहुंचाना। और तुम मुझे बताओ, बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका फॉर अमेरिकन, ये क्या दर्शाता है? दिस इज नथिंग बट हाइपर नेशनलिज्म। अब ये उसकी सोच है यार। ही इज राइट विंग ना। रिपब्लिकन्स आर ऑलवेज राइट विंग। Sir, one political reason is that since Trump is also a lame duck president, he has no fear that he had to muster votes again. Has his 2 terms has been completed? I have read this somewhere. नहीं, बट अभी तो वो रिफॉर्म कर रहा है ना, तीसरी टर्म के लिए भी कर रहा है वो, अमेंडमेंट वगैरह कोशिश कर रहा है वो। आई हैव नॉट रेड अबाउट इट मच, लेकिन आई थिंक ही इज ट्राइंग टू डू दैट। Okay, sir. देखो, हाइपर नेशनलिस्ट बंदा ही, पुतिन ने क्या करा? अपने आप को इम्यून कर दिया, फॉर फ्यूचर के लिए सिक्योर कर दिया। जिनपिंग ने क्या करा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रिफॉर्म्स, पॉलिट ब्यूरो के चार्टर को ही चेंज कर दिया। क्या करने के लिए? अपनी टर्म बढ़ाने के लिए। पुतिन ने कर दिया, जिनपिंग ने कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप भी यही कोशिश कर रहा है। कई देशों में वन नेशन वन इलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन वो उसके पीछे कोई सियासत नहीं है, उसमें तो हमारा फायदा है। वन नेशन वन इलेक्शन को मत बीच में ले आना। मकसद चाहे कुछ भी हो, हमें तो फायदा देखना है यहाँ पर। ठीक है? आई एम नॉट इंस्टिगेटिंग यू अगेंस्ट एनी पर्सन हियर और एनी। वॉज हिटलर हाइपर नेशनलिस्ट? एब्सोल्युटली। इट्स, सी, फासिज्म और हाइपर नेशनलिज्म में कोई फर्क थोड़ी है। फासिज्म क्या बोलता है? नथिंग अबव द स्टेट, नथिंग बियॉन्ड द स्टेट, एवरीथिंग एट द ऑल्टर ऑफ द स्टेट। ये मैं आपको मुसोलिनी की स्टेटमेंट बता रहा हूं, इटली की, मित्तल। On it, sir. हाँ, तो हाइपर नेशनलिज्म तो ग्लोरीफाई करता है नेशन को, और वो नेशन के चक्कर में हिटलर की पॉलिसीज आपको बताऊं, लेबन सेरम, कि हमें जर्मन जो प्योर रेस है उसके लिए एक लिविंग स्पेस चाहिए, पूरी दुनिया पर हमें कब्जा करना है, हर जर्मनी के पास एक देश हो रहने के लिए, मतलब इतनी जगह चाहिए जर्मन्स को, वो बोला। और जर्मन्स आर प्योर, तभी तो ज्यूज को मार रहा। एंड माइनॉरिटी बिकम्स द सॉफ्ट टारगेट एंड योर लीडर इज योर सुपरमैन। लीडर से बड़ा कोई नहीं है। ट्रंप से बड़ा कौन है? कोई नहीं है। जिनपिंग, पुतिन से बड़ा कौन है? पॉलिटिकल ऑपोजिशन को ये लोग खत्म करते हैं, मीडिया को ये गोदी में बिठा लेते हैं अपने, लैप मीडिया, लैपटॉप मीडिया, ये ट्रंप वगैरह जैसे लोग करते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता कुछ ऐसा। एनीथिंग एल्स? गौरव, So I हैव have यू one question. हाँ गौरव, हैव यू गॉट दिस आंसर? ट्रंप वाला, व्हाई इज ही डूइंग इट? बोलो सर, उसकी आइडियोलॉजी है तो। Yes, sir. हाँ Sir, here can we also add one more thing? हाँ जी, बोलिए। Sure. Like because from many of the organizations, USA is leaving.
So I have read that because it is expected that USA is the most developed or the biggest economy, and because of that, it is putting most of the money in the organizations, and other developing countries, mostly the China, is getting the benefits of these uh, money which is US is providing, See, and because of that, US is also withdrawn. यार वो एक कैपिटलिस्ट है. Capitalists hate taxes and they hate charities. And Trump thinks that UN is a tax on Americans. The global war on terror is another tax on Americans. Fighting for Syria is another tax on Americans. NATO में प्रोटेक्शन देना यूरोपियंस को is another tax on Americans. जापान को, साउथ कोरिया को चाइना से बचाना is another tax on Americans. इवन कल को वो क्वाड भी छोड़ देगा. देखो, कोई स्टेटमेंट नहीं है, मत बोलना वहां. अगर छोड़ दे तो बोलेगा भाई मुझे क्या लेना देना चाइना से, मैं अपने टैरिफ लगाऊंगा. इंडियन ओशन को तुम संभालो, जापान संभालो, इंडिया संभालो और ऑस्ट्रेलिया संभालो, चाइना को मैं क्यों संभालूं भाई. एंड पिछले टर्म में तो उसने जापान को बोल दिया था भाई अपने बम वम खुद बना ले, हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे. और तभी तो जापान इंडिया के साथ मिला और बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया जापान ने. ठीक है ना, अपना डिफेंस डॉक्ट्राइन चेंज कर दिया जापान ने. अब जापान की जो आर्मी है उन्होंने प्रण लिया था कि हम सिर्फ डिफेंसिव पर्पसेस के लिए काम करेंगे और किसी बाहर की टेरिटरी पर जाकर वॉर नहीं करेंगे. लेकिन जापान हैज चेंज दैट डॉक्ट्राइन, इट हैज रिवाइज्ड, और उन्होंने कहा अब जापानीज आर्मी दुनिया की किसी भी धरती पर अपने आप को और अपने दोस्तों को डिफेंड करने जा सकती है. जैसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड में करा था आइलैंड हॉपिंग, याद होगा, पोर्ट ब्लेयर वगैरह में, यहां तक आ गए थे नॉर्थ ईस्ट तक. तो आज भी अब जापान ऐसा कर सकता है. देव रिवाइज्ड, आई थिंक 9th अमेंडमेंट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेना, बस जरूरत नहीं है इतना डीप जाने का. बट दिस इज द थिंग व्हिच आई एम सेइंग. यस कुमार गौरव, टेल मी मोर, यू आर रेजिंग योर हैंड, बोलो. Sir, there was one question that why there is sudden rise of right-wing political parties in throughout the world. देखो, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस. आप ग्लोबल डेट देखें आप, वो अनसस्टेनेबल है. एंड जो सोशलिज्म है या जो स्टेट वेलफेयरिज्म है, उसने स्टेट्स को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, वीक कर दिया है. एंड इसीलिए सब लोग अब अपना अपना पलड़ा देख रहे हैं. ओके, इसका आंसर पता है कहां छुपा है. जर्मनी में हिटलर क्यों आया था? क्योंकि जर्मनी की जो खुद की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थी, उसमें जर्मन्स को कोई सहारा देने वाला चाहिए था. इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रहा था जर्मनी. वर्ल्ड वॉर 1 के सारे के वॉर रेपरेशन जर्मनी पर आ गए थे. तो इसका मतलब जर्मन्स को बचाने वाला एक मसीहा चाहिए था उनको. इसीलिए एक पॉपुलिस्ट लीडर आया जिसने लोगों के वीक होने का फायदा उठाया. एक थ्योरी भी कहती है कि पीपल आर वेरी वीक लीडर्स, कॉमनर्स कैन नॉट बी गुड लीडर्स. इसीलिए दे लुक फॉर व्हाट दे हैव अ फियर, कॉमनर्स हैव अ फियर ऑफ फ्रीडम कहा जाता है. एरिक फ्रॉम की शायद ये थ्योरी है कि पीपल हैव अ फियर ऑफ फ्रीडम, और इसीलिए उनको हाथ पकड़ने के लिए कौन चाहिए होता है? उनको हाथ पकड़ने के लिए कोई पॉपुलिस्ट लीडर चाहिए होता है. अगर वो पॉपुलिस्ट लीडर नेहरू जैसा डेमोक्रेटिक बन जाए, फिर तो वहां पर शांति हो सकती है, मिलिट्री कूज नहीं होंगे. अगर वो जियाउल हक जैसा या फिर जियाउर रहमान जैसा या फिर जिन्ना जैसा अगर वो एक ग्रैंडाइजिंग बंदा हो जाए, या ट्रंप जैसा, फिर वहां पर हाइपर नेशनलिज्म फैल जाता है. इट हैपेंड इन मेनी प्लेसेस. जर्मनी में हुआ हिटलर के अंडर, मुसोलिनी इटली, फ्रैंको स्पेन, जापान में भी फासिज्म आया उस टाइम, बहुत जगह पर आया. इसीलिए दुनिया में वही सी वर्ल्ड हैज आल्सो गॉन. 2008 के डिप्रेशन में से आज तक यूरोप निकला नहीं है. गौरव, कुमार गौरव, यूरोप हैज स्टिल नॉट कम आउट ऑफ द 2008 ग्लोबल रिसेशन. आज भी उनका ग्रोथ रेट 0.1% के आसपास है. पीपल, पिग्स कंट्रीज, पोर्टुगल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन, ये आज भी ब्रेक्सिट, ग्रेक्सिट, टेक्सिट, ये सब कोशिश हो रही है. यूरोपियन यूनियन का डिक्लाइन हो रहा है, सुप्रा नेशनलिज्म का डिक्लाइन हो रहा है, और इंडिविजुअल कंट्रीज क्या कर रही हैं, राइज हो रही हैं. राइज ऑफ राइट इसीलिए हो रहा है हर जगह. फिर हमें ये लग रहा है कि माइग्रेंट्स हमारे दुश्मन है. भाई मेरे पास 150 करोड़ लोगों को पालने के लिए तो पैसे नहीं है. Why will I sustain 40,000 more Rohingyas?
I don't have money for the blacks in America and the southern states of America or the Western American states. Why should I host these Indians who are illegal immigrants? They are taking our jobs and they are taking our wives. We don't like it. Simple. Yes, Vijay Lakshmi, carry on. So my question is with respect to Russia-Ukraine. So if a question comes that you have to formulate a peace deal which is acceptable to both the nations, how would you do that? So what points can we include? So some of the points I have thought, like these are general ones, that we should lift the sanctions, redevelopment plan and all. But sir, the two most contentious things, that is the expansion of NATO in Ukraine and also the territories which are being occupied by Russia. How would you solve these things? So solving the territorial issues, ये एक bilateral issue है. क्रिमिया उन्होंने 2014 में लिया था. Sanctions have not worked. तो क्या करोगे? क्या पुतिन उसको दे रहा है वापस? नहीं दे रहा. मे बी नेटो और पुतिन क्या कर, सी यूक्रेन इज ओनली अ पॉन हेयर. तो नेटो और रशिया बैठकर क्या कर सकते हैं? एक पीस डील ब्रोकर कर सकते हैं कि भैया हम नेटो को आज के बाद इसके अलावा कहीं और एक्सपैंड नहीं करेंगे. वी विल मेंटेन द स्टेटस को, बशर्ते कि तू क्या करे, तू इनको 2014 का स्टेटस को लौटा दे. यू गिव अस द क्रिमिया, you give us all the territories of those Black Sea जो आपने अनेक्स करी हैं. We will lift up the sanctions. We will not expand NATO eastwards. I am repeating it. आप क्या कहोगे? आप पुतिन को बिठाओगे? देखो, जेलेंस्की के बैठने पर काम नहीं होगा. जेलेंस्की इज ओनली मोहरा जिसको वेस्ट ने यूज करा है. अमेरिका की पॉलिसी है बेट एंड ब्लीड, कि दुश्मन को वॉर में क्या कर दो, इतना बिजी कर दो कि वो बाकी सब जंगें हार जाए. और उससे क्या हो रहा है? आप इसका इंप्लीकेशन पता है कहां देख रहे हो? सीरिया हार गया रशिया. बशर अल असाद हैज नाउ लॉस्ट. प्लीज अंडरस्टैंड, बशर अल असाद हार गया है. वो रशिया का दोस्त था. वो क्यों हारा है? क्योंकि अमेरिका ने रशिया का ध्यान यूक्रेन में बहुत ज्यादा भटका दिया था. आप उसको सिंपल बोलो कि तुम हमारा क्रिमिया वापस करो, 2014 का स्टेटस को वापस करो. हम कोई भी पपेट गवर्नमेंट यहां नहीं बिठाएंगे. हम नेटो को और ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे, बिकॉज नेटो इज अ मिलिट्री डिफेंस पैक्ट. इट इज नॉट अ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क और समथिंग. We will not expand eastwards and you give us our territories. Varna war will continue. Yes, Vijay Lakshmi. Yes, sir. So I thought on similar lines, but it was more restrictive. Like I thought that we can say that like Ukraine can join NATO, but NATO will not allow its soldiers or arms to be supplied there. So that can be one protection or assurance देखो, that can be. वो तो पुतिन तो कह रहा है मैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दूंगा अगर एक भी कंट्री एक्स्ट्रा नेटो को ज्वाइन करा. पुतिन तो ये बोल रहा है. मेरे बॉर्डर में तो वो कह रहा है मैं किसी को ज्वाइन करने नहीं दूंगा. आई विल इन्वेड दैट कंट्री विच ज्वाइंस नेटो. और आप नेटो ज्वाइन करवाकर लड़ाई बंद नहीं करा सकते. आप लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हो और आपके सैंक्शंस भी काम नहीं करे. देखो, इतना बड़ा रशिया एक छोटे से क्रिमिया को क्यों लेकर जा रहा है? Why is he taking Crimea? He is not taking Crimea because he wants the territory. He is taking away Crimea because he wants to tell the West that I am not here to see, I am here to play. It was the Russian resurgence. और उस टाइम कौन थे पार्टी में? डेमोक्रेट्स थे. अगर रिपब्लिकन्स होते वो क्रिमिया को हाथ भी ना लगाता, ये मेरी गारंटी है. वो डेमोक्रेट्स थे, बुजदिल थे, ओबामा के बंदे, इसीलिए वो क्रिमिया छीन लाया. Okay, Adhyan, Dr. Adhyan, please carry on. Sir, also, like, I just wanted to add in this that we can start with more practical solutions, like what we saw in the ceasefire deal between Hamas and Israel. There was no concrete solution which was provided between the two. However, the first step was a ceasefire which was negotiated for XYZ days. Then rehabilitation and relocation of all the citizens who are displaced. Then building the infrastructure again, and a rounds of a series of discussions and dialogue on as to what the status of the territories which have been claimed by Russia,
can be done over the time to come to a conclusion which is agreeable to both the sides. I think you can leave it on a blind end over there rather than giving hypothetical solutions. That would look like more informed, I think. See, देखो दो चीजें हैं. Your points are excellent and they are actually the practical things which will happen between any two countries which are engaged in war. जो अभी हमें आदर्श नहीं, अध्ययन ने बताया है, वो कोई भी जो दो देश लड़ रहे हैं, चाहे इजराइल पैलेस्टीन लड़ रहे हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान लड़े, चाहे कोई भी लड़े, उन सब देशों में सीज फायर के बाद ऐसा ही होना चाहिए जो अभी हमें डॉक्टर अध्ययन ने बताया है. बट स्टार्ट कहां से करें? मेन बोन ऑफ कंटेंशंस क्या है? नेटो. आप नेटो को मेंशन करे बिना आप इन सब चीजों पर नहीं आ सकते. यू कांट टेल द एग्जामिनर दैट डायरेक्टली सीज फायर करा दो. सीज फायर के लिए तुम मानेंगे क्यों? जब वो ये कंडीशन मानेंगे कि सर नेटो को हम अब एक्सपैंड नहीं करेंगे. अध्ययन तो उसको फिलॉसफी देनी पड़ेगी. आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज कर रहे हो, यू आर वर्किंग लाइक एन एग्जीक्यूटिव, बट देन ऑल्सो वर्क लाइक अ पॉलिटिशियन फर्स्ट. है ना? पॉलिटिशियन क्या करेगा? वो एक वे फॉरवर्ड देगा. फिर तो भैया आप लोग एम्बेसडर्स हैं, आप लोगों ने काम करना है. ये सब आप लोग वहां से ऑपरेशन एयरलिफ्ट करा लाओ, आप लोग वहां डॉक्टरों की टीम भेज दो, आप लोग सीज फायर करा लो, आप लोग डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भेज दो वहां पर, आप लोग यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पर तैनात कर दो. वो तो फिर प्रोसीजरल चीजें हैं. If we talk about the philosophical thing, तो philosophically we have to stop the expansion of NATO. NATO ही इस लड़ाई की जड़ है, फसाद की जड़ है. और पुतिन ने भी बहुत अच्छा मौका देखा. अगर वो यूक्रेन ज्वाइन कर लेता नेटो को, फिर पुतिन कभी उस पर अटैक नहीं करता था. क्यों? इट वुड हैव बीन ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल. यूक्रेन पर अटैक मतलब पूरे यूरोप पर अटैक. इसीलिए क्या करा उन्होंने? इसीलिए उसने क्या करा? इसीलिए उसने उसके ज्वाइन करने से पहले उस पर अटैक कर दिया. खैर ये मतलब ये वैसे गॉसिप है. इट इज मतलब वहां पर आई डोंट थिंक वो पूछेगा. और इनफैक्ट एक और चीज आपको बताऊं, यूरोपियन यूनियन ने भी बीच में इंटरवीन करने से क्या लगा दिया? यूरोपियन यूनियन भी तो इंटरवीन कर सकता था ना डायरेक्टली यूक्रेन वॉर में. उन्होंने क्या कहा? यूक्रेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो, सो वी आर नॉट गोइंग अहेड. सिंपल. राइट? ओके, आदर्श प्लीज कैरी ऑन. Sir, I have two questions. हाँ जी. First is both the questions are related to West Asia. Okay. First is like what is the future now? Because again, the ceasefire is on hold, and Hamas is saying that okay, I will like that we will close the deal, and US is saying that the hell will be on the Palestinians. So what will be the future, or how the negotiations? And second question is related to the rise of Qatar as a negotiator in this particular region. Like what is the main reason how Qatar has become a major negotiator in West Asia? See, Qatar is a type of country जो गल्फ कोऑपरेशन. I'll answer the second question first. पहले वाले का मुझे इतना क्लैरिटी नहीं है कि अभी रिसेंटली डील क्या हुई है, इसीलिए मैं सेकंड क्वेश्चन को पहले आंसर कर देता हूं. पहले वाला आप में से कोई आंसर कर देना, मुझे भी एनलाइटन कर देना, या मैं गूगल कर लूंगा उसको. तो कतर मेन नेगोशिएटर कैसे रहा है? देखो, नेगोशिएटर बंदा क्या होता है? नेगोशिएटर बंदा इज ट्रस्टेड बाय बोथ द पार्टीज. कतर वॉज अ पार्ट ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. जीसीसी का पार्ट था वो, मतलब सऊदी अरेबिया का एलाय था. लेकिन कतर ने साथ की साथ अपनी दोस्ती शिया ईरान के साथ भी रखी. ऑफिशियली इतनी नहीं रखी, लेकिन ट्रैक 2 ट्रैक 1.5 जरूर रखी. इसका मतलब जो दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक तो सऊदी अरब जो है वो क्या है आपका सुन्नी है, और जो ईरान है वो शिया है. उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? उन दोनों के बीच में संधि हो जाती है, और वो कतर ही है जिसको दोनों ट्रस्ट करते हैं. दूसरी चीज, कतर को तालिबान भी ट्रस्ट करता है, कतर को अमेरिका भी ट्रस्ट करता है. अमेरिका के बहुत सारे रिजर्व्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं कतर में. तालिबान क्या है? कतर ऐसा भी गुंडागर्दी करता है जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स में इनको आर्म भी करता है, इनको पैसा भी देता है.
कतर को अफगानिस्तान की ओपीएम में भी बहुत इंटरेस्ट है। सो कतर इस तरह से एक प्लेयर बना है। कतर इज डूइंग what a clean India could do. Qatar is, Qatar is a mediator. Like Qatar is a dirtier version of India. इंडिया भी मिडिल ईस्ट में तीनों देशों के साथ दोस्त है, इजराइल, ईरान एंड सऊदी अरब। ये तीनों आपस में क्या है, दुश्मन है, लेकिन इंडिया इन सबके साथ दोस्त है। Sir, because it is also like I was there, so it's because USA is one of the biggest military bases in Qatar, and at the same time, as you already mentioned, that all of the non-state actors base is also there in the Qatar, and still they are not. वही तो मैंने आपको बताया ना, कतर तालिबान को भी फंडिंग कर रहा है, कतर अमेरिका के साथ भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं अमेरिका की कतर में, कतर सऊदी अरेबिया के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है और ईरान के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है, इंडिया के साथ भी कर रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान वाले जाते हैं उनको भी कतर को कोई किसी से लगाव नहीं है, दुश्मनी नहीं है। कतर ये बोलता है आपने, और यूएई का भी यही सीन है, कतर और यूएई ये बोलते हैं आप लोग दाऊद इब्राहिम हो बॉम्बे में बम फोड़ कर आए हो, हमारे दुबई में आकर या हमारे कतर में आकर बम नहीं फोड़ना, यहां आकर डायमंड का शोरूम खोलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काला धन माफिया कहीं से कमाओ, एक्सटॉर्शन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अफीम बेचनी है बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ गुंडागर्दी करोगे वील शूट यू। कतर का ये कहना है कि हमसे बदमाशी करोगे वी विल शूट यू। कतर हैज वन ऑफ द हाईएस्ट आई थिंक पर कैपिटा इनकम्स इन द वर्ल्ड, नंबर वन है, इसीलिए बहुत अमीर है ना। छोटा सा देश, एक बूंदी जितना देश, इतना बड़ा डिप्लोमेटिक जो हैंडल करता है जायंट्स को, अमेरिका को, रशिया को, चाइना को, टर्की को, इस्तांबुल को। आप सीरिया में भी तो यही हो रहा है, सीरिया में कतर नहीं था इसीलिए सीरिया का पंगा बना रहा। सीरिया में कौन कौन थे, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। बशर अल असाद है, उसको चाइना, रशिया और ईरान सपोर्ट कर रहा है, लेबनीज हिजबुल्लाह सपोर्ट कर रहा है। उसको अपोज कौन कौन कर रहा था बशर अल असाद को, फ्री सीरियन आर्मी विच वाज सपोर्टेड बाय अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एंड सऊदी अरेबिया। वहां पर एक तीसरा प्लेयर आ जाता है टर्की। टर्की क्यों आता है, कुर्द्स के कारण, बिकॉज कुर्द हैड अ नेशनैलिटी इशू इन द सीरिया एज वेल एज द नॉर्दर्न इराक, और टर्की का जो साउथ ईस्ट टर्की है तो उनकी फोर्स को बनाकर वो पेशमरगाज बना देता है। और फिर बशर अल असाद वीक हो गया, फ्री सीरियन आर्मी की वजह से जो अमेरिका की थी, उसमें पावर वैक्यूम किसने फिल किया, आईएसआईएस। और आईएसआईएस का एक और कॉम्पिटिटर पैदा हो गया, जो पुराना शिकारी, जो पुराना भेड़िया था, अल कायदा। सो सीरिया में हर बंदे पर गोली मार रहा है, बंदूक मार रहा है। वहां कौन एब्सेंट था, कतर। अगर कतर सीरिया में होता तो ब्रोकरेज कर देता इन सब गुंडों में। मैंने सीरिया इशू को बहुत सारे एंगल से जोड़ दिया, टर्की भी जोड़ दिया, वेस्ट भी जोड़ दिया, ईस्ट भी जोड़ दिया, टेररिज्म भी जोड़ दिया। Are you understanding? Yes, sir. Sir, because it was only the absence of Qatar that took down Syria. अगर कतर जैसा बदमाश देश होता, अमीर, बदमाश, अयाश, whatever you may call it, अच्छा भी है, no, I understood all three are there. तो सीरिया क्या हो जाता, सीरिया would have been good. Yeah. और बोलिए, yes, who do I, okay, कुमार गौरव, बोलिए। Sir, my question is related with the last one, Russia-Ukraine. So what India should learn from Russia-Ukraine war? Okay, India should learn pre-preparedness for war. Ukraine was caught napping. एकदम रशिया ने इन्वेड कर दिया, कल को चाइना और पाकिस्तान भी कर सकते हैं मिलकर। सो एक तो रियलिज्म में ये, दूसरा वॉर ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, ये भी कि वॉर का अंत भी डायलॉग से ही होता है। तो हमें डिप्लोमेटिक चैनल तो बनाए ही रखने हैं। दूसरी अच्छी चीज तो यही निकाल सकते हो आप। सर, थर्ड आई वांट टू ऐड। हाँ, प्लीज ऐड आदर्श। सर, for Ukraine, because it was over dependence on the West, and for India we were over dependent on Russia, so we have to be आत्मनिर्भर in defense. एक और चीज आप सीख सकते हो, रशिया ने 2014 में क्रिमिया लिया था। 2014 में एक चीज, एक सेकंड, हाँ ईशांत मित्तल, यू कैन स्लीप, थैंक यू। ओके, रशिया ने, मैं बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ, रशिया ने 2014 में क्रिमिया लिया था और वेस्ट ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए। रशिया ने पता क्या करा, अपना बंदोबस्त कैसे किया रशिया ने,
रशिया ने चाइना के साथ $400 बिलियन की 2038 तक की गैस डील साइन कर ली। रशिया साइंड अ गैस डील worth $400 billion with China to export gas to China till 2038. It nullified all the Western sanctions. तो आप अगर देखो, इंडिया सीख सकता है ना, इंडिया ने अपने पार्टनर्स खुद ढूंढने हैं। अगर कल को कोई इंडिया पर सैंक्शंस लगाता है तो इंडिया को भी क्या चाहिए, एक कुशन चाहिए। हमने ये करा भी था, हमने जब बांग्लादेश इन्वेड करा था और हमने जब पोखरान 1 करा था इंदिरा गांधी ने, उससे पहले हमने क्या करा था, वी साइंड अ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर, प्लीज रिमेंबर। हमने नैम के कंफर्ट जोन और आइडियलिज्म को खत्म करके हमने क्या साइन करा था, पीस डील साइन करा था हमने। किसके साथ साइन किया था, रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ। हमने भी अपना जुगाड़ कर लिया था कि अगर चाइना बीच में आएगा, अमेरिका बीच में आएगा, तो रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। और उसमें स्पेशल एक क्लॉज मिसेस गांधी ने लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि अगर रशिया की लड़ाई होगी तो इंडिया बीच में आएगा, और अगर इंडिया की लड़ाई होगी तो रशिया बीच में आएगा। हमने तो कहाँ ही जाना रशिया की हेल्प करने, मेरा नाम जोकर बना रहे थे हम तो रशिया ने हमें हेल्प करना था अगर चाइना हम पर एग्रेसिव हो जाता तो। यस, वी डिड दैट। हमने भी एक क्वेश्चन बनाकर रखा, इकोनॉमिक क्वेश्चन भी था। रशिया का हमारे ऊपर गगनयान की, इसरो में भी हेल्प कर रहा था, मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी। Russia has been an unconditional support to India. Russia's military transfers to India are always unconditional. वो बोलता है भाई मैं तेरे लिए कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा हूं, तो इसका एटॉमिक बम बना चाहे बिजली बना, ये तेरी मर्जी है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तुझे ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा हूं, तूने अमेरिका पर गिराना है, चाइना पर गिराना है, पाकिस्तान पर गिराना है, जिस पर गिराना है उस पर गिरा, आई डोंट केयर। दिस इज वॉट रशिया इज। अमेरिका तुम्हें अगर देता है ना कुछ 100, तो उस पर रुकावटें लगा देता है। सो दिस इज रशिया फॉर यू। यस, ओके कुमार गौरव, प्लीज कैरी ऑन, बोलो। अच्छा यार, आपको फायदा भी लग रहा है, मजा आ रहा है? आई मीन, आई यू इवन गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस सेशन? मुझे Yes, हमेशा sir. Yes, sir, definitely. A lot of clearance on your parts and different questions how to ओके answer. ओके, टेल मी मोर। So यस कुमार। my part has been done Sir, for now. I will sir, I want give to add some. something यस and ask. शिवांश। Yes. Yes, sir. On this learning from Russia-Ukraine war, I think a crucial point is that the nature of warfare is changing, and we have to be ready for that. बिल्कुल। Because drones were a part of it, psychological warfare, control of supply chain, and various other things. Excellent, So, excellent. And I had one question. So we say so many things about Russia being an unconditional friend. Why is it being so? नहीं, सी ओके, लेट्स गो बैक टू द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा में अमेरिका ने बहुत कोशिश करा कि इंडिया अमेरिका के कैंप में आ जाए। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं कि रशिया क्यों इंडिया के साथ आया। अमेरिका ने बहुत कोशिश करा कि इंडिया जो है एक सुपर पावर, सुपर नहीं, चलो एक अच्छी थर्ड वर्ल्ड का लीडर है, हमारे कैंप में आ जाओ और बहुत सारे देश इसको फॉलो करके हमारे साथ आ जाएंगे। नेहरू वॉज अ गुड मैन एंड ही हैड अ वेरी गुड इंटरनेशनल रेपो देयर। उन्होंने ऐसा किया। अब इसके बाद क्या होता है, इंडिया नहीं माना, नेहरू नहीं माना कि हम नहीं आएंगे जी तुम्हारे कैंप में, है ना। मिसेस गांधी भी आई थिंक निक्सन को बिना मिले आ गई थी, वहां सबमिट करने गई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट का, ऐसा कुछ स्टोरी मैंने सुना है। कुमार विश्वास बोलते रहते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई। अब रशिया ने इस चक्कर में किसको अपीज करना स्टार्ट कर दिया कोल्ड वॉर एरा में, याद है? चाइना को और पाकिस्तान, सॉरी अमेरिका ने किसको अपीज करना शुरू कर दिया? जब इंडिया उसके कैंप में नहीं आया तो इंडिया के दुश्मन कौन है? चाइना और पाकिस्तान। सो देयर वॉज अ क्लियर कट अमेरिका चाइना पाकिस्तान एक्सिस, राइट शिवांश? अब इंडिया हैड नो अदर ऑप्शन। इंडिया को भी एक क्वेश्चन चाहिए था, इंडिया को अपने नैम वाले आइडियलिज्म से बाहर आना था। तो वहां पर हमारा रियलिज्म शुरू होता है। हमने रशिया, वियतनाम और इंडिया एक्सिस बनाया। वियतनाम भी था हमारे यहाँ, जिसको चाइना ने इन्वेड कर दिया था, तो वियतनाम भी हमारा ही दोस्त था, उस टाइम से दोस्ती है। तो तब से रशिया हमारे साथ है। रशिया के जो नितिन देख लो, क्रूशेव देख लो, और उसके बाद गॉर्बाचेव देख लो। देखो
लेनिन और स्टालिन तक हमारी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं रही। स्टालिन के टाइम हमारे रिलेशंस बहुत बिगड़ गए थे। स्टालिन ने एक चीज बोल दी थी नाम के लिए कि इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस। वो बोला ये हम नहीं, नाम वैम के ड्रामे हम नहीं सह रहे। इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस। हमारे साथ जो नहीं है वो हमारे खिलाफ है, तो वी डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है ना। लेकिन फिर उसके बाद हाँ हमारे रिलेशंस अच्छे हुए, हमारे रिलेशंस बहुत। और गोल्डन पीरियड तो फिर मिसेस गांधी के टाइम आया। मिसेस गांधी कौन थी? यस, हु वाज मिसेस गांधी? हु विल आंसर दिस? यस, आदर्श, हु वाज मिसेस गांधी? इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी। कौन थी इंदिरा गांधी? व्हाट विल यू? प्राइम मिनिस्टर नहीं, पापा की परी। ओ माय गॉड, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है यार आईआर के तुम लोगों के। इंदिरा गांधी वाज पापा की परी। ओके, आगे शिवांश, यू आर रेजिंग योर हैंड, टेल मी। हाँ जी बोलो No, शिवांश। sir. Sir, I have one. हाँ जी Yeah. आदर्श, बोलिए बोलिए। जी जी जी। Sir, in recent years, everyone is saying that our foreign policy is becoming very bold. So Okay. if the question is asked, if they ask like, is it really becoming very bold, or was it earlier also bolder? So how we will balance this type of questions? Sir, there are always many continuities and there are always many changes. कंटिन्यूटी क्या है आपकी फॉरेन पॉलिसी में? आपने आज तक पीस, वासुदेव कुटुंबकम, डायलॉग, डिप्लोमेसी ये सब नहीं छोड़ा है। आपने अफ्रीका के साथ नॉन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, थर्ड वर्ल्ड की लीडरशिप, नेहरू से लेकर मोदी तक ये मेंटेन रही है। पाकिस्तान नेबरहुड हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, नेहरू से लेकर मोदी तक। तो ये तो कंटिन्यूटी रही है। चेंजेस क्या है? यस, वी आर मोर प्रोएक्टिव। हम लीडरशिप रोल्स ज्यादा लेने लगे हैं। हम वर्ल्ड वॉर की कह रहा हूँ, वर्ल्ड जो ये आपका ओलंपिक्स की हम दावेदारी ठोक रहे हैं, G20 समिट्स करवा रहे हैं, यूएनएससी को मांगने में हम और ज्यादा आतुर हो गए हैं। हम क्लाइमेट जस्टिस का पाठ पढ़ा रहे हैं। ओके जागलान, गॉड ब्लेस यू, ये बाद में देख लेना आप। हम क्लाइमेट जस्टिस में हम बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम कर रहे हैं, क्वाड जैसी चीजें बना रहे हैं। चाइना को ओपनली हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं ग्लोबल फोरम्स पर। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की हम बातें कर रहे हैं, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की हम बातें कर रहे हैं, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म की हम बातें कर रहे हैं। सो यस, वी आर बोल्ड सर। फ्रॉम लुक ईस्ट वी हैव कम टू एक्ट ईस्ट। 10 years ऑफ एक्ट ईस्ट। सो पहले हम देख रहे थे, अब हम एक्ट भी कर रहे हैं। वी हैव बिकम प्रोएक्टिव ऑन ऑल फ्रंट्स। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सर, सार्क डिप्लोमेसी सर, बिम्स्टेक, अगर सार्क काम नहीं करता वी आर गोइंग टू बिम्स्टेक सर। आसियान आउटरीच सर, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को हम बुला रहे हैं सर, इनवाइट कर रहे हैं। सुकार्नो के टाइम्स पर हम वापस आ गए। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दोज थिंग्स। नाकाम है? नहीं है हम नाकाम। चैलेंजेस हैं? बिल्कुल हैं। वो हमेशा कहेगा काम नहीं कर रहा भाई तुम्हारी पॉलिसी। मैं कहूंगा नहीं सर काम कर रहा है लेकिन चैलेंजेस हैं। यू विल नेवर से काम नहीं कर रही पॉलिसी, यू से सर चैलेंजेस हैं एंड वी आर टैकलिंग दीज चैलेंजेस सर। यस, हु एल्स? कुमार, गौरव, अभिजीत मलिक, गौरव सब्रवाल, प्राची, आयुषी, अध्ययन, विजय लक्ष्मी, ओके, शिवांश, आदर्श। आदर्श यू आर गुड? यस सर, I'm good. तो कॉन्फिडेंस खराब हो गया था उस दिन, तुम कह रहे थे यार। अबे कॉन्फिडेंस तो पूरा एकदम कॉन्फिडेंस बनाकर चलना है। यू आर द किंग। तुम तो लग भी ऐसे रहे हो कि अगर मुझे सेलेक्ट नहीं करा तो मैं तुम्हें कुछ आई माफिया लग रहे हो तुम तो, बिल्कुल भाई लग रहे हो तुम तो। तुम तो चौधरी अपने जस्टिफाई कर रहे हो तुम तो अपने नाम को यार। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के फिर भी तुम चौधरी लग रहे हो तुम पूरे एकदम। यू आर अ डॉन। यस गौरव, बोलिए गौरव जी, तहसीलदार जी। यस, कम ऑन। सर इन क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हम पीओके कहते रहते हैं, अक्साई चीन को इतना हाईलाइट क्यों नहीं करते? क्या हम मतलब चाइना से डरते हैं? मतलब क्या फिर मतलब ये पूछा होता सर ये? पीओके, एक तो आप ये बोलोगे सर देयर इज डेफिनेटली अ पावर डिफरेंशियल बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड देयर इज अ लेस पावर डिफरेंशियल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो वी थिंक दैट पाकिस्तान से कुछ भी लेना इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, इज अ लोअर हैंगिंग फ्रूट देन चाइना से कुछ लेना। ओके सर। सबसे पहली चीज तो ये। फिर
चाइना, बस ये मेरे को तो यही सबसे बड़ी चीज लगती है। एंड चाइना की दैट 5 फिंगर पॉलिसी, वो हमें तंग करता रहता है। वो अगर हम अक्साई चीन की तरफ जाते हैं, वो अरुणाचल में तंग करता है, वो डोकलाम में तंग कर देता है, वो सिक्किम में तंग कर देता है, वो नेपाल में तंग कर देता है। तो हमें चाइना को पूरे के पूरी पट्टी को डील करना है। इसीलिए हम एक अकेले अक्साई चीन को क्या नहीं कर रहे, हाईलाइट नहीं कर रहे। अक्साई चीन चाइना के लिए क्या करता है सर, ऑल वेदर रूट बनाता है। कहां से बनाता है? तिब्बत से लेकर जिंगजियांग तक बनाता है। यस, देयर इज अ पावर डिफरेंशियल। और एक और चीज बताऊं, जब अभिनंदन का इशू हुआ था, हमारा अभिनंदन पाकिस्तान में पकड़ा गया था पीओडब्ल्यू, प्रिजनर्स ऑफ वॉर की तरह, हमारी मीडिया ने खूब धड़ल्ले से निंदा करी थी पाकिस्तान की। गोली मार देंगे, उरी बना दी हमने, है ना, वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारा ना डोकलाम क्राइसिस भी हुआ था चाइना के साथ। गोल्डन बेग ऑल्डी में भी हुआ था, हॉट स्प्रिंग्स में भी हुआ था, पैंगोंग सो में भी हुआ है, चुमार में भी हुआ है, डोकलाम में भी हुआ है। हमारी मीडिया ने हमेशा रिस्पॉन्सिबल प्ले करा है विज़ चाइना। चाइना को हम उकसाते नहीं है, हमारी मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। पाकिस्तान के टाइम हमारी मीडिया भी हाइपर नेशनलिस्ट हो जाती है। चाइना के टाइम हमारी मीडिया भी क्या हो जाती है? क्या हम डरते हैं? नहीं सर। लेकिन सर ये रियलिटी है कि ही इज अ बिगर एंड, यार उसकी, आप ये देखें, उसकी इकोनॉमी इज 5 टाइम्स लार्जर देन इंडिया, and its defense spending per capita as a percentage of GDP is also so much higher than India. I think 8 to 9% वो R&D और डिफेंस में स्पेंड कर रहे हैं टोटल मिलाकर, एंड वी आर ओनली मिनिस्क्यूल 3 to 4% टोटल मिलाकर सिक्योरिटी पर। तो देर इज और हम 3 से 4%, 3 ट्रिलियन का कर रहे हैं, 3.5 का, वो 8 से 9%, 17 ट्रिलियन का कर रहे हैं। तो पावर डिफरेंशियल इतना ज्यादा है भैया आप में और चाइना में। आप एक रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल नहीं कहूंगा, ये भी एक चाणक्य नीति ही है कि जो आपसे पावरफुल है, वक्ती तौर पर आप उससे लड़ तो सकते नहीं, खत्म तो हो नहीं सकते, इंतजार कर सकते हो जब ये पावर डिफरेंशियल कम हो, फिर आप उसको टैकल करें, वरना फिर आप बैलेंस ऑफ पावर बनाएं। मंडल थ्योरी, मिथ, जो आपका इमीडिएट नेबर है वो आपका क्या होगा? दुश्मन। चाइना आपका दुश्मन हो गया, उसका पड़ोसी क्या है? वो उसका दुश्मन होगा। जापान और साउथ कोरिया और ताइवान, वो हमारे क्या हैं? दोस्त हो गए। ये अमरीश पुरी ने बताया था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमरीश पुरी भी तो फॉरेन पॉलिसी में एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने हमें, और चाणक्य ने बताया मंडल थ्योरी में कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आर इमीडिएट नेबरहुड पाकिस्तान एंड चाइना, दे आर आर एनिमीज। ईरान हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, उधर जापान और कोरिया हमारा दोस्त है, और उधर ताइवान हमारा दोस्त है, आसियान हमारा दोस्त है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और मेरे को कोई रीजन नहीं मिलता। हम चाइना के टाइम तो हम यही बोलते हैं, कड़ी निंदा वगैरह ही करते हैं हम, है ना। राजनाथ सिंह डज कड़ी निंदा, है ना, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, पहले पकड़ तो लो फिर छोड़ने की बात करना। बट देन अगेन, we are IAS officers, to be IAS officers, so we can't say all that. Lighter. Any other doubt, guys? Yes, sir, one more हाँ, question. बोलो गौरव, बोलो। हाँ गौरव, बोलो। Sir, in one of the transcript, it was asked why South mathematics is more in the South Indian students, but craze for engineering in the North India. So, what should be the answer for this type of question? Okay. Mathematics is more in the South Indians. Yes, sir. And engineering is more in the North Indians. Yes, sir. आप बोल सकते हो सर, I do not see any cultural significance of this. I cannot, means as of now, even I can't find a historical link or legacy to it. एंड ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइपिंग होती है कि बनिए जो होते हैं या वो होते हैं वो ज्यादा अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, या मारवाड़ीज आर बेटर बिजनेसमैन, इवन ब्राह्मण्स कैन बी बेटर बिजनेसमैन, इवन सरदार भी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। सो वी कैनॉट compartmentalize mathematics for the South Indians and engineering for the North Indians. Anil Kumble was an engineer also and very good cricketer also. He belonged to South India. Javagal Srinath was a cricketer also and engineer also. I think he also belonged to South India. तो आप ऐसा कुछ उदाहरण देकर उसको आप वो बोल सकते हैं। Sir, I can add one point here. हाँ, प्लीज ऐड। मुझे नहीं दिमाग में आ रहे, आप लोग ऐड करो। आदर्श। So I think because of the engineering colleges, you can say IIT Roorkee is the oldest, then IIT Delhi, IIT Kanpur. So most of the IITs initially were in the north. And in the south there is IIT Chennai. So and even the
but then again I don't find a link. Historical universities जो अच्छी हैं वो कहाँ थी? तक्षशिला और विक्रमशिला and this Nalanda, they were in north, but mathematics वहाँ नहीं हुआ, so I don't find a link mathematics का, and I don't know how to answer it. Adhyan, can you suggest something? Adhyan, Shrivansh, Vijay Lakshmi, why Abhijit is there? Why सर South इतना नहीं India पूछेंगे, mathematics and North India engineering? Yes, Adhyan, or anyone. शिवांश, इतना नहीं पूछेंगे सर। ये तुमको भी कुछ ऐसा डेटा नहीं, ये ट्रांसक्रिप्ट का क्वेश्चन बता रहा है गौरव। वो अच्छा ऐसा है क्या? हाँ सर इंडिया में वो नॉर्थ इंडिया में ना इंजीनियरिंग कॉलेज काफी ज्यादा प्रोलिफरेट हुए हैं, स्पेशली नोएडा, यूपी और ये पूरा जो साइड है। बस इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ है, ये एक लॉजिक हो सकता है कि हर बंदा नॉर्थ इंडिया का। अब फिर ये पूछेगा कि सिलिकॉन वैली साउथ में क्यों आई? सारे नॉर्थ इंडियन जॉब करने मैसूर क्यों जाते हैं, इन्फोसिस में? I don't have an answer for this again. You say, sir, we cannot compartmentalize. We cannot say that North India is good at engineering, and engineering is also mathematics, sir. Maths के बिना इंजीनियर कहाँ बनोगे? मैथ्स के बिना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बिना, कैलकुलस के बिना, ट्राइगोनोमेट्री के बिना, हाउ कैन यू बिकम एन इंजीनियर? यस, विजय लक्ष्मी। Sir, there was one question in the transcript. Sir, first was that how many countries are there? वो तो ठीक है, but sir, then there was a follow-up question कि any more countries which you suggest that could be made. So, sir, is it a trap question? Like if we say Palestine, Hong Kong, Taiwan, something, or should we give some answer to this? हाँ, you give. It's not a trap question. आप बोलो we support a two-state solution to Palestine. We support the Oslo Accords. So हम Yes, sir, चाहते for हैं, Palestine we can say, but for this Taiwan, Hong Kong or आप other बोलो ना, autonomous चाइना से regions तुम्हारा वगैरह। क्या लगाव है? बोलो ना ताइवान को बनाओ, बोलो ताइवान को बनाओ सेपरेट देश, तोड़ो चाइना को, तिब्बत को भी बनाओ, मैं तो कह रहा हूँ। सर मैं देन वो हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं बोलेंगे कि आप हमारी कंट्री में भी तो सेपरेटिस्ट और ऐसी मतलब है नहीं, टेंडेंसीज तो। तुम ये बोलो सर, फॉरेन पॉलिसी है ये, वी हैव टू रिस्पेक्ट रियलिज्म। दुश्मन को तोड़ना है, खुद को थोड़ी तोड़ना है हमने। अखंड भारत का सपना तो और कंट्रीज को यूनाइट करना चाहता है सर। यू से दिस। ओके सर। इंडिया इज अ बिग होमलैंड ना, इंडिया इज अ सिविलाइजेशन। यू से अखंड भारत क्या है? जो अभी नए पार्लियामेंट में मैप लगा है, शायद उसमें सीरिया लेबनान भी ले लिया इन्होंने, जहां तक मुझे लग रहा है, बाकी मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है। अखंड भारत मीन्स अ बिग एंटिटी। यू से सर अखंड भारत का विजन कुछ और है हमारा, बट सर हाँ, हम चाह रहे हैं कि जो ये हाइपर नेशनलिस्ट या जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं ये अत्याचार ना करें। अब सोचो, वो ताइवान का इन्वेजन चाह रहा है चाइना। शुड वी वांट दिस? नो सर, गिव देम फ्रीडम। We even support humanitarian on humanitarian grounds the two-state solution. Israel being our very good friend, we are still supporting Palestinian liberation. यस सर। और तुम क्या सपोर्ट कर सकती हो? स्कॉटलैंड सपोर्ट कर सकती हो। अंग्रेजों को तोड़ो, अच्छे से तोड़ो अंग्रेजों को, और लंदन को बनाओ अलग से। और बोलो। यस, शिवांश बोलिए। गलती से हो गया था, अगेन सॉरी। ओके, गलती से हाथ आप मुझे चुप करा रहे हो, है ना? खामोश। सो या why there have been so many battles in हरियाणा, but मतलब इसके अनुसार एक तो ज्योग्राफी हो जाएगा सर, कि and proximity to Delhi and all that sir. second, my dad is calling. 1 second. हेलो। हाँ, मैं कार कर देता हूँ, मैं करके ही सोऊंगा, मेरी क्लास चल रही है जी, 12 बजे खत्म हो जाएगी। मैं, आप चिंता मत करो, मैं करके सोऊंगा जी। लॉक करवा दो, मैं करके सोऊंगा जी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं करके सोऊंगा, मैं जा रहा हूँ नीचे बस। ओके गाइस, आई एम रियली सॉरी। या टेल मी गौरव। Sir, why there were so many battles in India, मतलब in हरियाणा? एक तो सर ज्योग्राफी, proximity to Delhi, सर और कोई reason? ओके, अगर तुम हिस्ट्री से चलो तो आयरन की डिस्कवरी से पहले हमारी सभ्यता कहाँ थी? सिर्फ हरियाणा वाले रीजन में थी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थी। धीरे 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 हम क्या होते रहे? प्रोग्रेस होते रहे, हम साउथवर्ड्स और ईस्टवर्ड एक्सपैंड होते रहे। मतलब जो ओल्डेस्ट, ओके शिवांश, यस, ओके, गॉड ब्लेस यू। सो जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन रही, जो ओल्डेस्ट दुनिया के स्टेक होल्डर्स रहे, जो ओल्डेस्ट दुनिया के राजा रहे, वो किस
सबसे उन्नत या सबसे प्रोग्रेसिव चीज को अपनी जागीर बनाना चाहते होंगे, इस रीजन को बनाना चाहते होंगे। सो तभी इस रीजन पर सबसे ज्यादा वो हुए, कॉन्क्वेस्ट्स भी हुए यहाँ पर, फॉरेन से अटैक भी हुए यहाँ पर सबसे ज्यादा। अब हरियाणा स्पेसिफिकली, आई डोंट नो हरियाणा, हरियाणा ही मीन्स द रीजन, राइट? बाय डिफॉल्ट वो कुरुक्षेत्र वहां हो गया, बट आर्यंस भी कहाँ आए थे सेटल होने? यहीं आए थे। सर दिस वाज द मेंस क्वेश्चन सर, मेंस में पूछा गया कि पानीपत में ही ज्यादा युद्ध क्यों हुए थे। ओके, आई डोंट रिमेम्बर मेंस क्वेश्चन। मतलब मैं इसको ऐसे आंसर करता कि जो सिविलाइजेशन के रूट्स जो हमारे स्टार्ट हुए वो यहां से हुए थे, यहां से सिविलाइजेशन बाकी जगह फैली। और आयरन की डिस्कवरी से पहले हम ईस्टवर्ड नहीं फैले थे, क्योंकि हमारे पास कॉपर और ब्रॉन्ज एज में थे, तो वो बहुत सॉफ्ट थी, तो उससे ट्रीज का क्लियरिंग नहीं हो रहा था। जब आयरन डिस्कवर हो गया इम्प्योरिटी डालकर, तब वो हार्ड चीज बनी, एक्स बना, हमने पेड़ वगैरह को क्लियर करा, तब हम ईस्टवर्ड गए। याद होगा आपको जनपदास महाजनपदास बुद्धा के टाइम, वो लेट आए थे ये बिहार वाले एरिया में। वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन टाउन्स का लेट हुआ। सबसे पहले ये नॉर्दर्न प्लेन्स थे जो वेस्ट वाले जो एक्सपैंड हुए, जो जो लेटेस्ट से वो हुए, अर्बनाइज हुए, है ना? तो जो चीज पुरानी होती है वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, उसकी हिस्टोरिकल लेगेसी होती है। और किसी को अगर राजा बनना है तो उस चीज का बनेगा, नए टाउन का, छोटे टाउन का, अविकसित टाउन का, लेस डेवलप्ड टाउन का राजा नहीं कोई बनेगा। सिंहासन चाहिए मुगलों को तो दिल्ली का लेगा, दिल्ली का सिंहासन लेगा मुगल, अगर कोई सिंहासन लेगा। तभी उन्होंने गद्दी भी कहां बनाई? नॉर्थ इंडिया में बनाई, दिल्ली में बनाई मुगलों ने भी। और इससे पुराने शासक भी अगर मुगलों से लो तो सब लोग यहीं पर सेटल हुए। कुशन्स यहाँ पर आए, है ना? सतवाहनास तो चलो नीचे वाले थे, बट कुशन्स आल्सो आई थिंक केम हियर। इंडो ग्रीक्स आल्सो केम टू द नॉर्दर्न एरिया, एंड देन हर्षा का टाइम्स यही हुआ, है ना? हर्षा आल्सो केम हियर, तो मनेसर का ही था हर्षा तो। ओके कुमार, बेस्ट विशेस। आई होप दिस वाज अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्ट, एंड यू आर ऑल इन द सेम बोट। अभिजीत हो गया 18 को है, विजय लक्ष्मी हो गई, आदर्श हो गया, गौरव तुम्हारा 17 को है, कुमार तुम्हारा भी 17-18 को है। तो यार तुम लोग तो यू आर ऑलरेडी देयर। थैंक यू सर। हाँ, यू आर विक्ट्री एवरीवन। यस, वील ऑल मेक इट, वील ऑल मेक इट ग्रेट। ठीक है ना? अभिजीत, यस, कीप स्माइलिंग। इसी तरह अच्छे से चिकना बन के जाना, छीले हुए अंडे बन के सब लोग, और पूरा शेव वेव करके अच्छे से, हाँ, ममाज बॉय बनकर जाओ। उनको एहसास दिलाओ कि तुम ईमानदार हो, है ना? शक्ल से ईमानदार दिखो। सो जस्ट बी, दे वांट रिस्पेक्ट। उनको अदब से बोलो, हर लाइन को स्टार्ट करने से पहले सर से स्टार्ट करिए आप हर अपना आंसर, ऐसे ही में शुरू हो जाइए। से सर, राइट सर, यस सर, नो सर, है ना? सविनय निवेदन यह है, जैसे वो फीस माफी की अर्जी प्रधानाचार्य के आगे लिखा करते थे, उसी अदब से आप लोगों को वहां पर उनको इज्जत करनी है ना? यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। कुमार, यू आर ऑलरेडी देयर, बस तुम ये सोचकर जाओ कि यू आर द विनर। तुम हिंदुस्तान के 2500 बच्चों में हो, they want you to get selected and you are a probable AIR1. See, every interview candidate is a probable AIR1 for them. अगर तुम खुद जाकर वहां फेंट हो जाओगे, पसीने आ जाएंगे, घबरा जाओगे, फिर थोड़ी होगा यार। तुम्हें बस ये नहीं करना है वहां पर। मुझे मेरे टीचर्स ने यही सिखाया था कि भाई नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन घबराना नहीं है, हाव भाव नहीं बदलने। बोलो भाई नहीं आया तो क्या आफत आ गई, मेंस क्लियर करके आया हूं मैं। और प्रीलिम्स तुक्के से हो सकता है, मेंस कभी तुक्के से नहीं होता। मेंस में लोहा लगता है, वो लोहा आप अपना मनवा कर आए हो कुमार गौरव। ज्यादा ही होगा फिर बोल देना एक बिहारी सब पे भारी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ बस, फिर तो बोलना कि भाई यूपीएससी ब्लॉक में भवन में हम कुछ कर देंगे, बिहार के बच्चे आजकल एक्टिव हुए पड़े हैं। ठीक है। हाँ गौरव, एनी अदर थिंग? सर एक मतलब ये क्वेश्चन था कि हिसार में ना स्टील इंडस्ट्रीज है, तो मतलब ये क्वेश्चन पूछते, मैं इसको काफी ढूंढ भी रहा था, मेरे को कोई रीजन नहीं मिला कि हिसार ही क्यों डेस्टिनेशन ली, क्योंकि ना कोई आई डोंट नो मतलब इंपोर्ट भी करना पड़ता है, तो एक इसका रीजन यही था कि क्योंकि उनका होम था।
सर और को क्या कुछ रीजन दे सकता हूँ? मैं ढूंढ भी रहा था, मेरे को कोई मिला नहीं सर। हिसार इज वेल कनेक्टेड विद ऑल द रेल लिंक्स। चाहे यहाँ पर लोहे की खदान नहीं होती, लेकिन कोयला यहाँ आता है। स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या आया होता है? बॉक्साइट चाहिए होता है, कोल चाहिए होता है, बहुत सारा पानी चाहिए होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में है, पानी की कमी नहीं है, कोयले की कमी नहीं है, चीप लेबर की कमी नहीं है, और इंजीनियर्स हैं हिसार में। यार ज्योग्राफी 10th क्लास, 9th क्लास, जो ज्योग्राफी में जो फैक्टर्स हैं हिसार के, बताओ। अगर हमारे पास और नहीं है, मालगाड़ी तो है। ओके सर। वरना तो यहाँ पर कोयला भी नहीं है, तो बिजली कैसे चल रही है हरियाणा पंजाब में? थर्मल प्लांट कैसे चल रहे हैं हरियाणा पंजाब के? सारा कोयला तो अभिजीत भेज रहा है, मयूरभंज से, उड़ीसा से और झारखंड से। राइट अभिजीत? अभिजीत के कोयले की वजह से तुम लोग जो हो बिजली जला रहे हो। तो भैया आप यही बोलो कि सर आयरन ओर नहीं है, पानी नहीं, सब कुछ है हमारे पास यहाँ। अगर कोई नहीं है तो हम मालगाड़ी से मंगवा रहे हैं। एंड दिस इज हाउ वी मेड इंडिया प्रॉस्परस विद अ ह्यूज कनेक्टिविटी ऑफ रेलवेज। फ्रेट कॉरिडोर्स बना रहे हैं, अब तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गए, भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया, इतना कुछ हो गया अब तो सर। ऐसे तो एक और बताऊं तुम्हें, हरियाणा में हिसार है ना, पंजाब में गोविंदगढ़ है। ओके सर। एक और चीज बोलना, लुधियाना में देयर इज अ ड्राई पोर्ट, एंड गुड़गांव इज अ वेयर हाउसिंग हब। आपको और पॉइंट्स दे रहा हूं अच्छे। गुड़गांव इज अ वेयर हाउसिंग हब, नोएडा इज अ वेयर हाउसिंग हब, खाड़खोदा इज अ वेयर हाउसिंग हब इन हरियाणा। खाड़खोदा जो है, इट इज अ वेयर हाउसिंग हब, एंड लुधियाना इज अ ड्राई पोर्ट, एंड इट इज वेल कनेक्टेड टू हिसार विद ऑल द रेल लिंक्स एंड एवरीथिंग। जीटी रोड के प्रॉक्सिमेट है हिसार। जी सर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हिसार और गोविंदगढ़ दोनों को ही इन्होंने आयरन हब बना दिया है रिस्पेक्टिव स्टेट्स का। गोविंदगढ़ फॉर पंजाब एंड हिसार फॉर हरियाणा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंडस्ट्रीज का और लोकेशन का। बट या दिस इज हाउ यू विल आंसर इट। और बोलिए। All right, guys, I hope you enjoyed this session as much as I enjoyed it delivering it to you. मुझे बड़ा अच्छा लगता है इंटेलेक्चुअल लोगों में आकर। You are all intellectuals. यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेशर्स भी बुलाए हुए हैं, तो कमल, प्राची, मनीषा, they are all, दिव्यांशी, they are all freshers. एंड ये कह रहे थे सर हमें देखना है कि इंटरव्यू वाले कैसे लोग होते हैं, उनको छू सकते हैं या नहीं। छू उनको आप तब लीजिएगा जब ये आईएएस बन के आ जाएंगे, राइट? जब ये आईएएस बन जाएंगे तो देख लीजिएगा इनको, पिन पिन लगाकर भी देख लीजिएगा इनको दर्द होता है या नहीं, है ना? तो तुम्हारे जैसे ही लोग हैं यार ये। मैं तो क्या नहीं गाइस, आई यू नॉट लाइक द कॉमन पीपल? मेरे कुछ फ्रेशर्स बच्चे भी हैं, इनको भी आप मोटिवेट करके जा सकते हैं। और मेरी कुछ तारीफ कर दी है कि भाई शुभम अग्रवाल पर विश्वास रखो, ही इज अ गुड मैन, ही विल टेक यू थ्रू टिल योर इंटरव्यूज। इतना ही मुझे चाहिए, राइट? एनीवेज, जोक्स अपार्ट, सो यस गाइस, लास्ट डाउट, 2 मिनट और आप लोगों के साथ कुछ भी। सर मैं तो अब दिल्ली पहुंच गया हूं, मतलब अब मैं लास्ट 3-4 डेज हैं, तो व्हाट शुड बी लाइक, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड बी द फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन खत्म करो, कल का वैलेंटाइन डे एंजॉय करो। इनफैक्ट 6 मिनट बाद है। आप गुलाब भेजो, केक भेजो, जो भेजना है भेजो। आप वैलेंटाइन डे एंजॉय करो। आप अपने आप को जितना हंसमुख रखोगे ना, क्योंकि अभी 3 दिन में कोई प्रिपरेशन नहीं होगी इंटरव्यू की। यू कीप योर सेल्फ वेरी वेरी फ्री, वॉच एनी वेब सीरीज, थोड़ा सा है तो अपने डैफ को देख लो एक बार, अगर ज्यादा ही है अगर तुम्हें, देख लो कि भाई यहां से। लेकिन अब प्रेशर नहीं लेना। मेरा एक स्टूडेंट है अभय, उसने बहुत प्रेशर ले, अभय जैन, बहुत प्रेशर ले लिया था उसने। 2 दिन पहले वो नेक्स्ट का मॉक देकर आया, उन्होंने उसको डिमोरलाइज कर दिया और उसको बोला कि भैया तेरी तैयारी नॉलेज गैप कम है। उनको शायद ये पता नहीं होगा कि 2 दिन बाद इसका इंटरव्यू है। और उस दिन मैं वीकेंड पर दिल्ली गया हुआ था, मेरे पास रोता हुआ आया वो लिटरली, श्री वो जो उसके ऊपर जवाहर ग्रोवर स्वीट्स के ऊपर, ही केम क्राइंग, आई हैड टू हैंड होल्ड हिम फॉर 3 days। नैनी बेबी सिटिंग करा मैंने, उसके डायपर तक बदले मैंने उसके, कि भाई तू रो मत यार, इतना प्यारा बच्चा है, 21 साल का बच्चा है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एल्यूमिनाई है, पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू में पहुंचा है, और तुम उसको 2 दिन पहले बोल रहे हो कि तेरे में नॉलेज नहीं है इंटरव्यू का। दिस इज द शिटिएस्ट थिंग दैट दीज पीपल कैन से टू यू, कि तुम लोगों के पास नॉलेज नहीं है।
तुम लोग पेपर क्लियर करके आए हो, यू पीपल डोंट हैव एनी dearth ऑफ नॉलेज, प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर द बेस्ट, यू पीपल आर द बेस्ट। ये मैंने कल परसों आपके एक सर्विंग ऑफिसर को भी बोला है कि भाई यू आर द बेस्ट, सो यू डोंट वरी अबाउट नॉलेज एंड एनीथिंग, यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर ना, तू क्यों डर रहा है, तो IRMS है, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ UPSC, यू हैव क्लियर्ड इट वंस। यस गौरव। सर वो एक बार आपने वो वर्ल्ड ऑफ पूरी इंटरनेशनल रिलेशन रीजन वाइज डिस्कस करी थी सर, उसकी वीडियो मिल सकती है सर, वो चाहिए। उसका वीडियो आई विल सेंड यू, यू जस्ट पिंग मी, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ IR वाली वीडियो। ओके सर। हाँ वो अच्छा वीडियो है, उसमें मैंने सारा वर्ल्ड ही कवर करा है ऑलमोस्ट, उससे काफी क्वेश्चंस आए हैं, सो यू सी दैट वीडियो इफ यू आर अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट इन दैट, यू सी दैट, आई विल सेंड यू, यू सेंड मी द व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू। और कोई किसी को, आदर्श भाई आपने कुछ नहीं करना, फ्री घूमो, टेंशन फ्री होकर घूमो कि यार बढ़िया यार मजे से हो जाएगा। और ओल्ड राजेंद्र नगर में ना बहुत नेगेटिविटी फैल जाती है। सर मैं वहां रुका ही नहीं, मैं MP भवन में इधर आ गया। हाँ बस तुमने जिंदगी का सबसे समझदारी वाला काम करा है कि तुम वहां रुके नहीं, नेगेटिविटी के हब में नहीं रुके तुम। सर मैं गया था मॉक देने करोल बाग, फिर मुझे समझ में आ गया कि हाँ दिस नो 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 नो, उसी के बाद तुम, हाँ वी इंटरेक्टेड एंड यू टोल्ड मी अबाउट दैट ऑल दैट, दे विल गिव यू नेगेटिव फीडबैक, उनके लिए तो तुम IAS हो ही नहीं, दे विल से यू आर गुड फॉर नथिंग, बट दे आर गुड फॉर नथिंग, दिल्ली इज गुड फॉर नथिंग आई फील। बोलो तुमने तो बच्चे मार दिए थे भाई, तुम मुझे क्या बोल रहे हो, तुमने तो एस्पिरेंट्स को मार दिया था, तुम लोग तो निकम्मे हो। जितने रिटायर्ड अफसर हैं उनको तुम्हें काउंटर क्वेश्चन करके आते कि तुमने ओल्ड राजेंद्र नगर को इंप्रूव करने के लिए क्या किया आज तक, तुम यहाँ आकर लाखों रुपए रोज लेते हो हमसे इंटरव्यू कंडक्ट करने के, उनको बेशर्म करके आते थोड़ा सा तुम लोग कराते, कोई दिक्कत नहीं है, बट एनीवेज तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो, जस्ट एंजॉय, एंड फॉर एनीथिंग एल्स आई एम देयर। इंटरव्यू वालों के लिए मेरे फोन 24 घंटे खुले हैं, ठीक है, वील मीट देन, अभी तो है आपके दिन, वील मीट। ओके सर, ऑल राइट गाइस, गॉड ब्लेस यू। Okay, Okay, sir. good Thank night. you, sir. Good night, everyone. Thank you, sir. Thank you.